أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر احسان، آپ سب ٹھیک ہے؟ شیئر کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ آج ہماری سیٹرڈے ہے نا، آج ہمارا کیا ہے؟ سیٹرڈے کو کیا ہوتا ہے؟ لسان القرآن۔ میرا لسان ہوتی ہے۔ ہاں واپس آ جائے نا روٹین پہ، رمضان سے پہلے والی پہ تو لسان ہی، سیٹرڈے بھی اور سنڈے کو مدینہ اور ہاں، سیٹرڈے کو لسان۔ منڈے کو ایڈوانس کلاس ہے، ٹیوزڈے کو بکس جو ہماری 5 چل رہی ہے مدینہ بک، اور اس کے جی بعد ٹیوزڈے وینسڈے کو پھر ایڈوانس ہوتی ہے، پھر تھرسڈے کو جو ہے نا وہ پھر ہم مدینہ بک 2 کر لیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے، کل بھی کوشش کروں گی مدینہ بک 2 کروانے کی، اور پھر 2 دن رکھ لیتے ہیں تاکہ جلدی جلدی اس کو ریویژن کر کے 5 تک لے جائیں نا۔ ٹھیک ہے، جی پیچھے سے پڑھ کے۔ اچھا جناب، تو آج ہم نے مضارع کے تغیرات پڑھنے۔ تغیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیرہ یغیر تغیر، ہے نا؟ جی چینج تغیر ہوتا ہے تبدیلی۔ جی جی اچھا جی، تو مضارع کے تغیرات اس سے پہلا والا کر لیا سب؟ یہ کیا تھا نا ہم نے، ہے نا؟ کچھ ٹرانسلیشن دیا تھا شاید میں نے آپ لوگوں کو، یہ والا رقیبہ یرکبو، باپ کے نام لکھے ہوئے، ان کی پریکٹس کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ان کو جی پڑھ کے بک کھول کے پریکٹس کیا کریں، جب تک پریکٹس نہیں ہوگی پھر مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، عربی میں ترجمہ کریں، اس کو تو کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کہ نہیں کرنا چاہتے؟ ریوائز کر لیں۔ جی میم کر جی لیتے ہیں۔ میم، الگ سے کیا کسی نے اس کو؟ نہیں میم، اچھا، پہلا جملہ آپ ہی کر لیں، بہت بول رہے ہیں، آ جائیں۔ مائک ٹھیک ہے آپ کا؟ جی میم، چلیں آ جائیں، ٹیسٹ کر لیں، جی عربی میں ترجمہ کریں۔ جی میم۔ آئی فاطمہ، کیا تو جانتی ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ ہوں، عربی میں کرنا ہے نا۔ اے فاطمہ کا پہلے ترجمہ کریں۔ یا فاطمہ، یا ہوں، فاطمہ تو، تو، ہاں، جی، کیا تو جانتی ہے ہوں، کیا تو جانتے کیا کے لیے کیا آتا ہے؟ ہیں کیا؟ حل، آ اور حل دونوں آ سکتے ہاں ہیں، ہاں، جی، آ ہاں بھی اور آتا حل، ہے حل بھی آتا ہے۔ فعل اگر آپ نے جملہ فعلیہ بنانا ہے تو اس میں آپ کو حل ہی لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی جی، تو کیسے بنائیں گی حل؟ حل، تو جانتی ہے، جانتی ہے، ایک میں میم عربی یاد مضارع نہیں ہے، مضارع ہے جی جی، اور واحد مؤنث ہے۔ کون جاننے کے لیے کیا آتا ہے فعل؟ یاد نہیں آ رہا ہے۔ علیمہ، کلیمہ، علیمہ، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ علم تو علم تو نہیں آئے علیمت، گا، نہیں وہ تو میں علیمت، جانتے ہوں علمتا کیا، علمتا نہیں۔ مضارع کے علمتی، اندر واحد مؤنث کا صیغہ عین لام میم سے بنائے، مضارع کے اندر، جی 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 جی، مضارع میں جائے علیمہ علم، یعلم، اور واحد مؤنث کا صیغہ کیا ہوگا؟ یعلم، تعلم، نہیں، تعلم، وہ تو غائب کا ہے نا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا تو جانتی ہے؟ علم تو ہوگا، علم، نہیں، نہ علم، نہیں نہیں، مینا یا نون ہوتا ہے نا میم اس میں؟ ہاں اینا ساؤنڈ آئے گی نا۔ حل تو علم، مینا، علیمینا، حل تو مینا، شاباش، حل تو مینا، کیا تو جانتی ہے؟ مضارع میں اگر آپ آئے نا تو یہ 10th نمبر کا صیغہ ہے نا، جی واحد مؤنث اس میں ضمیر ہوتی ہے، یہ لگتا جمع کے لیے جمع کی طرح، لیکن یہ ہوتا واحد مؤنث ہے۔ حل تو مینا، کیا تو جانتی ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ کس نے جی، تجھے کس نے، تجھے پیدا کیا؟ پہلے کیا لگائیں گے؟ من کس نے؟ کس؟ خلق، من، من خلقہا، خلق، من خلق کا، خلق خلق، خلقہ، کا، خلق کا کی یا کی؟ ہاں کی کی، من خلقہ کی، خلق کی،
ये अब ये देखें मन खलक की, यहाँ भी तो जी अल्लेमीना का सीगा आया और यहाँ पर भी क्या है, मुअन्नस का ही आया ना। मोहनस ये आपका खलका की है, यानी ये माजी है, किसने पैदा किया, पास्ट टेंस है ना। और यहाँ पर जी क्या तू जानती है ना। तो आ जी हल, आ दोनों नहीं लगेंगे, एक लगेगा, या तो आ लगाएं या फिर हल लगाएं। तो हल ज्यादातर अलिफ लाम वाले इसम के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे फेल के साथ भी लगा सकते हैं। हल तु अल्लिमीना, क्या तू जानती है, मन खलका की, तुझे किसने पैदा किया। अब वो कह रही है हाँ, हाँ के लिए क्या आएगा, हल नाम के नाम जगह ना नाम अम, मैं जानती हूँ। अलिम तो माजी में क्यों जा रही हैं आप बार बार, मैं जानती हूँ माजी और तो मुजारे माजी में में कोई तो फर्क मुझे नहीं है। मैं जानती हाँ हूँ, जी है हाँ मैं जानती ना हूँ, क्या कहेगी, ना अम, नाम मैं, अना, नालम अना वाला सी जी अलम अना आए, अलम आलम, आलमू, नाम आलमू, मुजक्कर मनुष्य दोनों के लिए यही आता है ना, आलमू, मैं जानती हूँ। अना जमीर नाम वाला सी है। आलिमा यालमू, तालमू, तालमू और आलमू, जी नाम आलमू, मैं जानती हूँ, अल्लाह ने मुझे पैदा किया। अल्लाह खलकल्लाहु पहले खलक फेल अल्लाह आएगा, पहले फेल आएगा। खलकनी अल्लाहु खलक खलका नी, खलकतानी जी ऐसे नहीं लगा देते। खलकनी इसम जाहिर फाइल आ रहा है, अल्लाह जी 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 हाँ, उसने तो खलकनी, मुझे खलक पैदा पैदा किया अल्लाह ने, अल्लाहू, ठीक है। नाम आलमू, खलकनी, ये पेश है, बहु नहीं है ये, मेरी पेश बहुत बड़ी हो जाती है हमेशा। आलमू, खलकनी, पैदा किया मुझको अल्लाह ने। नाम आलमू, ये जी हाँ मैं जानती हूँ। आलमू लड़के के लिए, मर्द के लिए भी होता है और औरत के लिए भी होता है, सही है। मुज़क्कर मुअन्नस आप यहाँ पे माजी जी लगा देते हैं, माजी नहीं लगाना, जानती जी हूँ, क्या तू जानती है, ठीक है ना। पैदा किया, पैदा किया पास्ट टेंस से, खलकनी अल्लाहू। अब इसको मिलाएंगे कैसे, खलकनी यल्लाहू, इस तरह मिलाएंगे, निल्लाहू नहीं कहेंगे, खलका निल्लाहू, ऐसे नहीं, खलकनी। मिलाते हुए यहाँ पे जबर आती है, यहाँ पे कब कब जबर आती है, आगे मिलाते हुए जबर आती है, ठीक है। ये पूरा एक और टॉपिक है कि अगर यहाँ उससे पे, पहले अलिफ हो तो हाँ अलिफ भी हो तो जबर आती है। चल देखते हैं फिर, जैसे वो आता है ना, यदा, मेरे दोनों हाथ, यदा या, है ना, या मेरे दोनों हाथ। या तो या के यानी बाद हाँ या के पर जबर आएगी। जानना, अब मादा उन्होंने बताया, अली माँ बाप, समिया से है। पैदा करना, दिमाग का काम है ना, बॉडी का, पैदा करना, खलका, जी खलका जी जो है ये बाप नसरा से है। खलक खलका जी यखलुकु, फौरन बोला करें इसको देख के, खलका यखलुकु, समिया, अलिमा यस्माउ, अलिमा यस्माउ यालम, यालम। अच्छा, ए लड़के क्या तू जानता है, जैद कहाँ गया। ए लड़के के लिए क्या होगा, या या वलदु या वलदु वलदू। या वलदु आगे क्या हल होगा, तालमु हल क्या तू क्या जानता तू है, जानता है हल तालमु ता, जी हल तू तालमु ताल हल तालमु तालमू। आगे क्या होगा, क्या तू तू जैद जानता है, अंता जमीर है इसमें, ठीक है। आइना हाँ, जैद जी जी जैद कहाँ गया है, हाँ कहाँ, आइना जैदुन ऐन, वैद हाँ ऐना, वैद आइना जैदुन आएगा, पहले फेल लगाए ना, ऐना फाइल आइना बाद में आता है। ऐना ज़हबा जहाबा, ज़हबा जहाबा जाहिदीन जा- जाहि जाहिदुन जाहिद, जैदुन जाहिदुन जाहिदुन फाइल बन रहा है ना, हाँ जी जाहिदिन क्यों जी कर रहे हैं जी इसको, फेल कभी काम यही मुजाफ कर रहा है नहीं। इसी को
अच्छा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाने हैं तो लगाएं, वरना ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद मैं नहीं जानता वो कहाँ गया है। जी ला आलमु हाँ, जी मुजारे पे ला मैं नहीं आता है, जानता। ला आलमू ला मैं नहीं जानता। ला वो कहाँ आलमू गया। मैं है ना, तो मैं के लिए ला आलमू। पहले तू जानता है था ना, तो तू जी जानता के लिए क्या, तालमू, और ला आलमू। आलमु ला हम्म, आलमु। आगे क्या, ज़ैदुन ऐना हम्म, हम्म, आइना ज़हबा, क्या है ऐना आइना ज़हबा। ज़हबा जी आइना ज़हबा ज़ैदुन नहीं, बस अब ठीक है, ज़हबा इतना ही काफी है। ज़हबा हुआ आएगा ना। हाँ ज़हबा हूँ हाँ कहाँ मिस क्यों। वो है ना मिस वो लिखा हुआ है तो जैद का नाम ज़ाबा में वो आ गया ठीक है हाँ, ज़हबा बस आ हुआ आएगा गया, ना। ऐना ज़हबा, ला आलमू ऐना ज़हबा, वो कहाँ गया है। नहीं, मैं नहीं जानता। अब यहाँ पे नहीं एक ही बार है। क्या तू जानता है, हाँ जैद कहाँ, मैं नहीं जानता, ला आलमू। अच्छा, इसमें क्या तू जानता है, हल आ गया था, हल के जवाब में ला लगाया, उसके बाद कॉमा भी छोटा सा डालते हैं, ठीक है ना। ला ला जी नहीं, इसमें क्या होगा, हल के जवाब में ये वाला ला तो मुजारे पे आ रहा है, नफी के लिए ना। ठीक जी ये तो मुजारे के लिए आ रहा है, नफी के लिए आ रहा है। तो इसी के साथ आप ला लगा दें, कॉमा न डालें, ला आलमू नहीं मैं जानता, मैं नहीं जानता, ऐना ज़हबा वो कहाँ गया। अच्छा, सब हो गया। ये बाप फा से है, अब रूफे हल्की में से आ रहे जी हैं ना। फतहा पता है, ज़हबा यफ्ता। फतहा ज़हबा अच्छा, अब ये यज़हबु ये कुरान मजीद की आयतें, इनको थोड़ा सा एहतियात से करना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यकीनन अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, और ना ही तुम्हारी सूरतों को, लेकिन वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमाल को देखता है। तो यकीनन के लिए क्या आएगा, इन्ना इन्नल्लाह इन्नल्लाह। इन्नल इन न अल्लाह। चले क्या नाम है, आप बनवाएं, नाम नहीं आते मुझे, जो बोल रही हैं अभी माइक पे। इन अल्लाह, आगे क्या होगा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह नहीं जानता, या हाँ, नहीं ला जानता नहीं, नहीं देखता। देखते हैं। ला अरे ला ला अरा ला ला यंजुर, यंस यंजुर क्या आएगा, यंजुरू आएगा, यंजुर आएगा। देखता ला आई यंजुरू, यंजुर कैसे यंजुर आ सकता है, लाहिनाई थोड़ी, हुक्म थोड़ी दिया हाँ जा रहा यंजुर है। ला यंजुरू, बेशक अल्लाह नहीं देखता, किसको नहीं देखता, इला, यानी नजरा इला होता है, इला किसको, किसकी तरफ नहीं जिसको देखता, अजसामी कुम। जी अजसाम उर्दू में भी बोलते हैं ना, जी अच्छा अच्छा। अजसामी कुम तुम्हारे जिस्मों को। ला तुम्हारे इसमें को नहीं। बेशक अल्लाह नहीं देखता, इला अजसामी कुम, जैसे जैसे जुमला आ रहा है वैसे वैसे तर्जुमा कर रहे हो। और ना ही तुम्हारी सूरतों को, वला वाला ला जो है रिपीट हो जाएगा, वला, और ना तुम्हारी तुम्हारी सूरतों को, सूरतों के लिए क्या सुवरक आएगा, इला, सुवरकुम इला जरूर सुवरकुम। डाल, इला जी सुवरकुम। हाँ, सुवरकुम सुवरा किसकी जमा है, सूरत सूरत की, सूरत उनकी जमा है, जी सुवरकुम। जबर क्यों लाई हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये ये फाइल है, सुवरी मफूल हो रहा है ना। इला, नहीं यहाँ जेर आएगी, सुवरी कुम होगा ना। जी अजसामिकुम, वला जो यहाँ आया है वो से पहले वो यहाँ आएगा। मफूल नहीं बना रहे हम, इला के बाद इसको मजरूर बना रहे हैं ना। जी 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 जी। वला सुवरकुम इला सुवरिकुम। अब क्या है आगे, अगला आगे क्या है, लेकिन, वलाकिन्ना वलाकिन्ना वलाकिन आएगा या वलाकिन्ना आएगा, वलाकिन्ना। अल्लाह, वलाकिन्ना तो वो रूफे मुशब्बा बिल फिल में से होता है ना। जी जी वाला जी। उसके बाद तो अगर आप वलाकिन्ना लगाएंगे ना, उसके बाद फिर आपको क्या लाना पड़ेगा, जुमला इस्मिया लाना पड़ेगा। जी उस्ताद जी। और हमने लाना है फेलिया। हम्म। जी फेलिया क्यों लाना है, देखने के लिए लाना है ना, जी जी देखना फेल तो होता है ना।
تو جی یہاں پر ہمارا کیا ہے، ولیکن، ولیکن جو ہوتا ہے نا مخفف ہو جاتا ہے، جیسے انا ان بن جاتا ہے نا فعل پہ آ کے، جی ولیکن پچھلے، قلوب اس کو کیا، قلوبکم ہاں اس کو کہتے ہیں حرف استدراک، ادراک استدراک کہتے ہیں نا اس کو، پچھلے بات کی نفی کر رہا ہے، ولیکن پوری بات کی نفی صدور کر دی، ولیکن ینظرو وہ دیکھتا ہے، قلوبکم اب قلوبی تو نہیں آئے گا نا، فعل کے بعد قلوبی صدوری کیوں لا رہی ہے، ین ہاں زرو، ولا ینظرو الا صدوری قلوب، ایسا قلوبکم، الا بقلوبکم، صدور تو سینے ہوتے نا، جی 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 قلوبکم دل، جب ہمارے پاس لفظ ہے تو ہم اس کو نہ کیوں نہ اس کو بنائیں قلوبکم، ولیکن ینظرو، ولیکن ینظرو بلکہ وہ دیکھتا ہے، الا قلوبکم، اور کس کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالُكُمْ مالکم و ہاں، و عمل اعمالکم، اب دوبارہ الا لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہی کافی ہے، و یعنی اصل جملہ کیا ہے، و الا اعمالکم، ٹھیک جی ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے، صرف اعمالکم کر دیں گے، وہ ایک و کافی ہے، جی عملکم اتنا بڑا جملہ تھا، دیکھیں ہم نے کس طرح بنایا اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے، بس یہی کچھ کرنا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، یہ آپ جو زیر زبر لگاتے ہیں نا، ان کی آپ کی غلطی درست ہو جاتی ہے، یہاں پہ ان اللہ ہو نہیں لگانا، زبر لگانا، کیونکہ ان آ رہا ہے، ان اللہ لا ینظرو، یہ لا نفی کا ہے، اس لیے یہاں پہ کچھ نہیں کرے گا، یہ پہلے مضارع رہے گا، الا اللہ کی خبر اجسامکم، بے منصوب شک اللہ نہیں دیکھتا تمہارے جسم کو، دیکھتا ہے ہمارے جسموں کو، ہم موٹے ہیں پتلے ہیں، نہیں نہیں اجسامکم، ولا الا صورکم، نہ ہماری کس کو دیکھتا ہے، شکلوں کو دیکھتا چہروں ہے، بالکل مجھے لگتا ہے یہاں پہ تشدید نہیں آنی چاہیے، یہاں پہ صورکم، سورن ہوتا ہے سواری کو، یہ رہا ہے، و الا صورکم، اور نہ تمہاری طرف تمہاری صورتوں کے، ولیکن بلکہ، کیا اس کا مطلب بٹ ہوتا ہے نا، پچھلی بات کی نفی جی ہو رہی ہے، لیکن لیکن وہ دیکھتا ہے، الا قلوبکم، الا کی وجہ سے قلوبی آئے گا، و جی اعمالکم، مجرور اور تمہارے اعمالوں، تمہارے قلوب دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور دیکھنا کے لیے کیا ہے، نظرہ، ینظرو، نظر نظر ینظر بہت نظر نصر اب آسان آ رہا ہے، ابھی آپ کر لیں، یہ قرآن مجید سے ہیں تو آپ کو رٹے ہوئے ہیں یہ سارے، جی وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، واللہ اللہ خلق الذی السماوات الله الذي والارض خلق السماوات والأرض وہ اللہ ہے، جملہ اسمیہ بن هو رہا ہے، الله وہ اللہ اللہ، وہ اللہ، هو وہ اللہ اللہ ہے، دیکھیں یہاں خبر بھی اور مبتدا دونوں معرفہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا جی اسم جلالہ، اس کو گرامر کے ہر رول سے نکال دیں، ٹھیک ہے، جب الف لام والا منادہ آتا ہے تو ہم یا ایہا لگاتے ہیں نا مذکر کے لیے، ہاں لیکن جی یہاں پہ صرف جی یا ہی لگاتے ہیں، تو کوئی بھی گرامر کا رول یہاں پہ نہیں چلتا، اس اسم جلالہ پہ، تو یہاں پہ آپ کی خبر بھی کیا آ رہی ہے، نکرہ نہیں آ رہی، معرفہ آ رہی ہے، مرفوع اللہ زی، جس نے پیدا معرفہ کیا، اب آپ کا اسم موصول آ گیا، اللہ زی، جی سوری، الذی هو الله الذي هو اللہ الذی خلق، خلق السماوات خلق اچھا ابھی ایک خلق سیکنڈ، السماوات وہ والارض اللہ زی خلق، اللہ زی کیوں لائی ہوں، اللہ تی نہیں لائی، کیونکہ اللہ کیا ہے، اس مذکر نے ہے، مذکر اللہ ابھی تعالی ابھی یہ مذکر موصوف بنے گا، یہ خبر تو بن گیا لیکن یہ موصوف بھی بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے اللہ کی صفت آ رہی ہے، جی اللہ اللہ کی صفت آ رہی ہے نا، اللہ زی کے بعد پیچھے موصوف ہوتا ہے، اس کی صفت ہوتی ہے، اللہ زی خلق کا، جس نے اب اس کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، خلق جب بھی اللہ تعالی آپ کی طرح جب بھی آپ کا جملہ صلۃ الموصول بنتا ہے تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو اس کے مطابق ہو، جب جی بھی جملہ، میں نے کل یہ الفاظ لکھوائے تھے کہ جب بھی جملہ جو ہوتا ہے وہ کیا بنتا ہے،
सिला बनता है या जुमला खबर बनता है, मुब्तदा होता है ना पीछे तो खबर बनता है। जब भी जुमला जुमले जुमले की बात कर रही हूँ, सेंटेंस की बात कर रही हूँ, मुरक्कब ताम की बात कर रही हूँ, जब भी जुमला सिला बनता है, चाहे जुमला इसमिया हो चाहे जुमला फेलिया हो, दोनों, ठीक है, सिला बनता है, जी या फिर वो खबर बनता है, या वो हाल बनता है, या फिर वो सिफत बनता है, जुमला सिफत बनता है, तो उसमें एक जमीर होती है जो किसकी तरफ लौटती है, पीछे, सिल वाइस ये वर्सा, पीछे वाइस वर्सा। अगर वो खबर बन रहा है तो मुब्तदा की तरफ लौटेगी ना, मुब्तदा के मुताबिक होगी ना, वो जमीर मुब्तदा के मुताबिक होगी। इसी तरह अगर जुमला फेलिया बन रहा है तो अब जैसे यहाँ पर ये जुमला फेलिया बन रहा है ना अल्लाह जी के बाद, तो इसमें जमीर जो है वो इसके मुताबिक है ना। ये जी सिला बन रहा है तो इस मौसूल के मुताबिक होगी, सिफत बन रहा है जुमला तो मौसूफ के मुताबिक होगी, हाल बन रहा है जुमला तो जुलहाल के मुताबिक होगी। इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन के ये चार जुमले चार बातें लिखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। जब भी जुमले को कुछ बना के लाते हैं ना, चार चीजों में से सिला नंबर सिलातुल मौसूल नंबर एक, तो उसकी जमीर किसके मुताबिक होगी, इसम मौसूल के मुताबिक होगी। खबर बना के ला रहे हैं तो मुब्तदा के मुताबिक उसमें एक जमीर होनी चाहिए। इस जमीर को क्या कहते हैं, इस जमीर को आयत जमीर आयद। जमीर आयत आयद कहते हैं, लौटने वाली जमीर। जी ठीक है, तो सिले में जमीर होनी चाहिए, सिलतुल मौसूल में, खबर में होनी चाहिए, हाल में होनी चाहिए, और फिर किस में होनी चाहिए, सिफत में होनी चाहिए जब जुमला बन के आ रहे हो। जी देखें, हाल जो होता है ना वो दाइकन भी हाल हो सकता है, राकिबन भी हाल हो सकता है, ये तो मुफरद हाल है ना। जब जुमला बनेगा यबकूना, है ना, अब ये जुमला हाल बन रहा है, वो रो रहे थे, इस हाल में कि वो रो रहे थे, इस हाल में कि दाइकूना, इस हाल में कि वो क्या कर, यद यद हकूना, वो हंस रहे थे, दाही का यद हकू। तो ये जो हाल जुमला बन रहा है, अब इसमें एक जमीर होगी जो मुब्तदा की तरफ जाएगी, जो जुलहाल की तरफ जाएगी, सॉरी। जब हाल बन रहा है तो उसकी जुलहाल की तरफ जाएगी, जब सिला बन रहा है तो उससे मौसूल की तरफ जाएगी, जब खबर बन रहा है जुमला तो फिर उसकी जो जमीर होगी, जमीर आयत, वो मुब्तदा की तरफ जाएगी। और अगर जुमला सिफत बन रहा है, जैसे यहाँ पे बन रहा है अभी, जुमला सिफत जी बन के आ रहा है, अल्लाह जी इसम मौसूल भी है, देखते हैं सिफत बन, और फिर नहीं, ये दोनों मिलके भी तो कुछ बनते हैं ना। फर्ज करें ये इसम मौसूल है, ठीक है, इसम मौसूल ही है ना, जी है असल में तो इसम मौसूल ही है। अब ये इसके जुमला आगे जुमला जो आ रहा है ये सिलतुल मौसूल आ रहा है। अब सिलतुल मौसूल में एक जमीर होगी जो इसके मुताबिक होगी, है ना, और जी फिर ये दोनों मिलके भी तो कुछ बनेंगे ना, प्लस होके, तो वो क्या बनेंगे, वो फिर क्या इसकी बनेंगे, सिफत किसकी सिफत बनेंगे, अल्लाह की। अल्लाह अल्लाह की की, अल्लाह की सिफत बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिलतुल मौसूल में एक जमीर थी जो कि अल्लाह जी के मुताबिक थी। जी ठीक है, अब जब आपने इसको सिफत बनाया है, पूरे जुमले को इसको सिफत बना दिया, तो अब इस सिफत जो है उसमें भी तो एक जमीर होनी चाहिए ना जो मौसूफ के मुताबिक हो, इस मौसूफ के मुताबिक हो, तो वो भी जी क्या है, हुआ ही है ना। हुआ इसके अंदर हुआ जमीर है जो कि अल्लाह की तरफ अल्लाह जा रही है, अल्लाह के, यानी उसके मौसूफ के मुताबिक है। तो जब जुमला, हाँ, जब आपकी खबर वगैरह, यहाँ भी खबर बनी, बट यहाँ पे खबर खबर जुमला तो नहीं बन रही ना, तो इसमें जमीर की जी जरूरत नहीं है। जब आपकी खबर जुमला बन जाती है तो फिर उसमें जमीर की जरूरत होती है। मैं जो गौर से सुनिएगा दोबारा कि जो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा जब जुमला बन के ये चार चीजें आ रही होती हैं, खबर भी जुमला बन रही है, सिफत भी जुमला बन रही है, हाल भी जुमला बन रही है, और सिला भी जुमला बन रहा है, ठीक है, तो फिर मुरक्कब क्या हो, इदाम बन के जब आ रही हाँ, है। हाँ, तो फिर उसमें एक जमीर होनी चाहिए जो उसके वाइस जो वर्सा के मुताबिक हो, सिलतुल मौसूल है तो उसका, अब इसको दोबारा सुन लेना यार, बहुत हो गया। तो अल्लाह जी ये मिस खला याद का, हो गया। याद भी हो समावात गया इतनी बार बोलती हूँ ना, याद भी हो जाता है। अच्छा चले, तो अब क्या है आपका, माशाल्लाह समावात माशाल्लाह, तो असमावाती आएगा या असमावाता आएगा, समावाती असमावाती असमावाता कुछ होता है, समावाती। मैं तो इसको मफूल बना रही हूँ, तो समावाती कैसे हो गया, खलकस, समावाती देखिए आती से ये वो आती
आता है। इस समावाती होगा मरफूट है ना, आई थिंक मैम समथिंग। ये जेर से होता है ना? ठीक है, वेरी गुड, जी माशाल्लाह, यही मैं टेस्ट कर रही थी। तो खलक़स समावाती वल, अर्द अब वल अर्थ, अर्थ। अर्थ के ऊपर क्या लगेगा? पहली बार वल में सही अर्द जवाब आना चाहिए। वल अर्द वो जबर। अर्दी वल अर्दी। अर्दा। क्योंकि आरोही मैं सिफ्त है वल ना, टीचर, अर्दा। तो वाव के बाद फॉलो कर सेम रहा है। हरकत आती है। हाँ, मैम वल सेम। अर्दा होगा। ये किसने जवाब और दिया? मुझे सेम हरकत आती है, ये किसका जवाब है? टीचर मैंने, आपका नाम क्या है? वाउतफिया है ना, वाउतफिया के बाद टीचर सेम आती है ना, जो पीछे सिद्रा, हो वही सेम हरकत सिद्रा है। बात कर रही हैं? हाँ, सिद्रा। जी टीचर। आप पहले भी आती हैं क्लास में, फिर छोड़ देते हैं, फिर क्या टीचर करते हैं? रमजान से पहले तक टीचर मैंने सारी ली थी, लेकिन टीचर रमजान के बाद कुछ क्लासेस आगे पीछे हो गई तो वो मुझे पता नहीं चला, तो मेरी मिस हो गई। नहीं, रमजान में काफी सारी क्लासेस कैंसिल हुई थी। अच्छा, आप ऐसे करें सिद्रा, आप कोर्स ले रही है ना ये वाला, जो कि अरूबा भी ले रही हैं? पार्ट 2 कर रही हैं नहीं या टीचर, फिर? यही बस लिसानुल कुरान का ही ले रही हूँ बस। हाँ, वही ना। नहीं टीचर, दूसरा जो है वो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। वो पहले 2 लेक्चर्स आए हैं, वो नहीं मैं अभी तक सुन पाई। पार्ट टू कर रही है ना आप? जी टीचर। हाँ, बस ठीक है। तो आपको फायदा होगा, क्योंकि ये क्लास हम हर सैटरडे को करते हैं और इसमें हम लिसानुल कुरान पढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी हम मुजारे पे जी तगय्युरात शुरू करने वाले हैं आगे। तो अगर पहले से पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? मैं आपको उस्तादा, मशवरा दे रही हूँ। अब यहाँ पे उस्तादा, वलर्दी नहीं आएगा, क्या आएगा मुझे बताएं? वल वल अर्दी, अर्दा वल वल अर्दी। अर्दा हाँ, वो से पहले जो वराब होता है ना, वही वो के बाद भी आता है, तो पहले मंसूब है ना, तो आगे भी जबर ही आएगी। जी उस्तादा, मुझे मेरा क्वेश्चन है, हाँ, बोले। ये जो आपने ये करवा रही हैं जुमले, ये सारे एग्जाम में भी आएंगे? नहीं, एग्जाम में नहीं आएंगे, आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ, अच्छा, ठीक है? तर्जुमा आएगा, लेकिन छोटे छोटे जुमले होंगे, इतने बड़े बड़े जुमले नहीं होंगे। ओके, तो ये आपकी मैं प्रैक्टिस, जैसे अभी यहाँ पर फेल बनाया है ना हमने, ये सब मौसूल, अब ये सिला बन जाएगा ना। अब इसम मौसूल और सिला मिलके क्या बनेगा? अल्लाह की सिफ्त बनेंगे। अल्लाह कौन है? वो जो, जिसने पैदा किया जमीन व आसमान को, वो ही जी अल्लाह है जिसने पैदा किया, जिसकी सिफात ये वाली हैं। तो ये मौसूफ हो गया, अकेला खबर नहीं बनेगा, ये मौसूफ है और ये आगे प्लस सिफ्त हो गई, ये दोनों मिलके तो खबर बनेंगे। अभी ये मौसूफ है और ये पूरा जो जुमला अल्लाह जीना इस मौसूल सिला है, इसकी सिफ्त बनेगी। बहरहाल जिनको समझ आ गई है, बहुत अच्छी तरह आ गई है। आगे चले। वो जानता है जो जमीन से निकलता है, वो कौन है भाई? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला। जो जमीन से निकलता है, और वो जानता है जो आसमान से नाजिल होता है। जी निकलना और नाजिल होना, नाजिल होने के लिए नजला का लफ्ज है और निकलने के लिए खराजा का लफ्ज है। अरेगा खराजा निकलना, एग्जिट जी करना, कमरे जी से निकलना भी होता है ना, निकलना वो एग्जिट होता है। जमीन से निकलना भी क्या होता है? वो भी खराजा ही होता है। खरजा अजीब बात है ना? खरजा अजीब बात है ना, कि जमीन से जी निकलना भी और कमरे से निकलना भी के लिए खराजा का लफ्ज है। चलें भाई, अरबी ऐसी जुबान है, एक लफ्ज की। तो अब क्या है? वो जानता है। अब प्रेजेंट टेंस है ये, ठीक है ना? प्रेजेंट टेंस है। बताइए, पहले मुजारे है। या अलमु, या या, अलमु, या यालमु। लमु या लमू, वो जानता है। हुआ जो जमीर है ना? अल्लाजी अल्लाह जो, अल्लाह जी, अल्लाजी या अल्लाह, अल्लाह जी की जब बजाय ना आप आगे आप क्या ला रहे हैं? फेल ला रहे हैं ना? तो जी जी फेल जी कौन सा ला रहे हैं? माजी ला रहे हैं या मुजारे ला रहे हैं? वो जानता है जो जमीन से निकलता है, मुजारे ला रहे हैं। मुजारिया मुजारिया हाँ, तो अब यहाँ पर आप लोग क्या लगा रहे थे? अल्लाह जी लगा रहे थे? नहीं, हमने लाना है इसका मफूल। तो मफूल जो है वो दो तरीके से लाया जा सकता है ना। अल्लाह जी ला के आगे उसका सिला ला के भी मफूल बन सकता है। वो जानता है, माँ भी इसम हाँ मौसूल ही है ना। माँ जी यखरुजू, निकलता है, जी जो कुछ भी निकलता है। माँ के अंदर माँ की तरह सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे माँ होती है ना, सबको लपेट लेती है। माँ जी जो कुछ भी, यखरुजू, माँ जमीन यखरुजू, से आगे क्या होगा? जो जो मिनल निकलता है अर्द, जमीन से अल जमीन, अर्द जमीन से, मिनल मिनल अर्दी, अर्द, मिनल अर्द जी
हाँ, वो जानता है जो कुछ भी जमीन से निकलता है, और वो जानता है व व वयअलम वयालमु दोबारा आएगा, वो जानता है। देखिए, हम अल्लाह ताला हमें सुन रहे हैं इस वक्त, और हम अल्लाह ताला के बारे में बातें कर रहे हैं। वयालमु मा युनज़्ज़िलु नहीं, युनज़िल ओली नहीं, ينزل नजला दराबा से है ना। अच्छा अच्छा बनाए मा यंज़िल ينزل ينزل यंज़िलु ينزل यनजिलु, सब कुछ तुमने लिख के दिया है। वयालमु मा यनजिलु, अब आसमान की तरफ चढ़ता है ना, तो इलस समाए, سماء इलस إلى है ना। السماء नहीं, आसमान से नाजिल होता है, सॉरी, नाजिल होता है, नाजिल युनज़्ज़िलु नाजिल की मिनस बात हो समाए। रही من है। जमीन, من हाँ, तो कौन सा सिला من आएगा? السماء मा यनजिलु मिनस समाए, आसमान से, मैंने सही लिखा था, मिनस समाए, आसमान से की बात हो रही है ना, उसके साथ नहीं हमने सिला लगाना, वो तो यंजिलू है, आसमान के साथ लगाना है, मिनस समाई, आसमान से नाल, और वो जानता है जो कुछ भी नाजिल होता है आसमान से। तो आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया करें, वयालमू, और वो जानता है। अब इसका ये तर्जुमा सही करना है, क्योंकि ये मुजारे है और उसमें हुआ जमीर फाइल है, ठीक है। वो जानते हैं, और हुआ जमीर किधर जा रही है, एक दफा अल्लाह का नाम आ गया तो उसी अल्लाह तरफ जा रही है, ठीक है ना। और फिर क्या है, माँ, जो कुछ भी नाजिल होता है आसमान से, जो कुछ भी निकलता है जमीन से। अब ये कुरान की आयतें जब आप जाएंगे तो खुद ही देखेंगे, आपको कुरान की तर्जुमा की आयतों का तर्जुमा कर रहे हैं आप लोग, और वो भी उर्दू से अरबी में। तो इंग्लिश में तो, इंग्लिश अरबी से तो उर्दू में कोई मुश्किल ही नहीं होगा ना। अब यहाँ माँ जो है, ये नफी के मानी में नहीं आ रहा। माँ जब आता है ना माजी में, इसको गौर से सुन, जब मैं बात अभी बताने जा रही हूँ, माजी में आता है तो नफी का मानी देता है। मुजारे में जब आता है ना, तो वो सिर्फ प्रेजेंट के मानी के लिए आता है। माँ अगर मुजारे के साथ लग जाए, मुजारे पे भी आता है, उस वक्त सिर्फ प्रेजेंट का मानी होता है, उस वक्त फ्यूचर में मुजारे का मानी नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बता रही हूँ। माँ किधर आता है, माजी पे नफी के लिए। मुजारे पे जब आता है तो मुजारे के ऊपर आके मुजारे को सिर्फ हाल के present मानी, में सिर्फ हाल के मानी में करता है, जी फ्यूचर में नहीं करेगा, रोक देता है। सही है। जी और ये इसम मौसूल और सिला मिल के क्या बन रहा है, कौन बताएगा क्या बने? इसम मौसूल और सिला है ना, आगे फेल है, सिला फाइल है। सिला सिलातुल मसूल बन रहा है। मिस सिलतुल मौसूल और इसम मौसूल मिलके क्या बन रहे हैं? यहां से मिस ले, तो हाँ ये बताओ। मफऊल बनेगा ना, मफूल बन मफऊल। मफूल बनेगा। तो ये कुछ अरबी वाले कहते हैं माँ को सिर्फ, लेकिन इसम मौसूल माँ का क्या मानी है, जो कुछ भी है ना, यही तो मफूल नहीं हो सकता, उसके आगे उसके सिला भी मिलाना है, दोनों को मिला के मफूल बनाना है। या लमू, अब वो जानता है जो कुछ भी निकलता है, या खुरुजू निकलता है जमीन से, और जो वो जानता है जो चढ़ता, जो जो उतरता है आसमान से, नाजिल होता है आसमान से। क्या तुम सब अरबी जुबान समझते हो? तुम सब की बात हो रही है अभी, तुम एक की बात नहीं हो रहे। क्या के लिए क्या आएगा, आ या हल, या अस्मा इस्तफाम में से कुछ आएगा? ये हुरूफ इस्तफाम है, और अस्मा इस्तफाम में से क्या आएगा कुछ? कोई ऐसा कैफा। अस्मा नहीं, कैफा, तो कैफा का तो मीनिंग अलग हाँ, वो होता तो है। कैसे होता है ना। हाँ हाँ क्या के लिए, मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई दो वर्ड आते ही नहीं है। माँ भी आता आ, है, माँ भी आता है ना, माँ भी आता है ना क्या माँ के ये लिए। इसके लिए आता है ना उस्ताजा, ये नॉन लिविंग के लिए। हाँ, वो नॉन लिविंग के लिए आता है, और वो जब आपको कुछ चीज पता नहीं होती ना, तो आप पूछते हैं व्हाट इज दिस। जी और यहाँ पर तो मन ऐसा कोई मामला नहीं है ना। मन जी जी। तो हल यहाँ पर तालमूना हल लुगतुल तालम, अरबिया। हल तालमुना होगा, तालमूना जानते लुगतुल, हो, समझते हो। हाँ फाहिमा, अल फाहिमा, फहिम हाँ हाँ हम फहिमा बाप या हल सामी आया, फाहिमा, तफहमूना, यफहमूना, तफहमूना, और फिर यहाँ पर तुम तफहम सब आया ना, जी तफहमूना, तफहमूना। ये बातें करनी है आपने, लुगतुल तफहमून, अरबिया। जी
तफहमूना तफहमुना लुगतुल लुगतुल अरबिया। अल अरबिया भी कर सकते हैं और अल लुगत अल अरबिया भी कर सकते हैं, अल अरबिया भी कर सकते हैं। क्या आप अरबी जुबान जुबान भी है ना, तो अल अरबी अल लुगत अल अरबिया कर लें, जी, है ना, लुगतुल अरबिया। या सिर्फ जी, अरबी कर लें, अरबी जानते हैं क्या, पर क्या आप अरबी जुबान भी समझते आ हैं? रही है ना उस्ताद, हम्म, लुगत बाज दफा आएगी ना। उसके बीच में ही आ जाता है, लेकिन अल लुगत अल अरबी आसान है, आपने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। अल लुगा, हाँ इसके ऊपर आपने वो नहीं डालनी तशदीद, अल लुगा, दो लाम आएंगे, एक लुगा का आएगा और एक अलिफ लाम आएगा। अल लुगा तल या तुल, तल तफहमूना आएगा तल। हल क्योंकि लुगतुल फाइल तो हमने पहले बना लुगतल लिया ना। जी लुगतल मफूल बना रही लुगत है। अल लुगतन अरबिया, अरबियता अरबिया। अरबियता। आगे आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो आसान है, इसलिए फिर यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा करवा दिया आज, तो इसको आप देख लीजिएगा, सही है। अ, ये जो अरबी जैसे तर्जुमा करना ना अरबी में मुश्किल लगता है, जैसे आपने करवाया ना, आपकी हेल्प से हमने किया। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते हैं सब, ऐसे ही चलते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, अभी छोटे छोटे जुमले के तो बहुत हार्ड जुमले थे ना, इसलिए मैंने करवाए हैं। देखिए कितनी मैंने हेल्प की है इसमें, आपसे कुछ नहीं पूछा। अच्छा, अब मुजारे के तगय्युरात आप पढ़े, शाहीन आके मुजारे के तगय्युरात पढ़े, मैं और पढ़ूँ उस्ताद? बाकी सब लोग और से सुने क्या कहा जा रहा है। पढ़े पढ़े जी, शाहीन। जी। मुजारे के तगय्युरात। फेल माजी तो मबनी अस्मा की तरह अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता, लेकिन फेल मुदारे अपनी नॉर्मल शक्ल के अलावा मजीद शक्लें इख्तियार करता है। इन शक्लों को हम मुदारे खफीफ और मुदारे अखफ दो उन्वानात के तहत समझने की कोशिश करेंगे। तो मुजारे क्या होता है, इसम की तरह अपनी शक्लें बदलता है, जैसे इसम दुन दन दिन, है ना, जी, मोमिनूना जी, मोमिनीना मोमिनीना मोमिनानी मोमिनैनी, शक्ल में बदली करता है ना, मुस्लिमात मुस्लिमात जी। मुस्लिमात, यानी अपना एराब बदलता है ना। तो इसी मुअर्रब होता है तरह, ना उस्ताद? हाँ लेकिन माजी जो होता है वो बिल्कुल नहीं बदलता। जी, माजी जो मबनी होता है होता है। मबनी अस्मा की तरह होता है। मबनी अस्मा कैसे क्या होते हैं, जैसे आपका हाजा हाजा हाजा, एक ही ड्रेस है, ये मबनी अस्मा है ना। तो माजी भी इन्हीं की तरह ही होता है, वो भी कोई अपनी शक्ल चेंज नहीं करता। वो भी मबनी जो होता है वो फिक्स होता है। मबनी का मतलब ही होती है बुनियाद। बुनियाद क्या होती है, जो आप घर के नीचे बनाते हैं वो फिक्स होती है, फिक्स्ड होती है वो। जी, तो जी, मबनी है, माजी मबनी है, वो कोई शक्ल नहीं बदलता। लेकिन मुजारे जो है वो क्या करता है, वो अपनी शक्लें बदलता है, और वो मजारे खफीफ भी होता है, मरफू भी होता है। मरफू तो होता ही है, जब पैदा होता है तो वो मरफू होता है, ठीक है। उसकी जी। डिफॉल्ट शक्ल जो होती है वो जब वो पैदा होता है, जैसे मरफू। बच्चा बच्चा दीने फितरत पे पैदा होता है, इसी तरह फेल भी और इसम भी दीने फितरत पे होता है, यानी डिफॉल्ट एंडिंग होती है उसकी पेश के साथ, मरफू होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, मुजारे खफीफ भी होता है, मंसूब मुजारे अखफ भी होता है। मुजारे खफीफ का क्या मतलब है, मंसूब मंसूब, और अखफ का क्या मतलब है, मजजूम जज्म मजजूम करने मजदूम। वाली। मजजूम है। यानी उसके ऊपर जज्म भी आ सकती है और उसके ऊपर जबर भी आ सकती है, जी ठीक है। और पेश तो आती ही है, यफअलू तफअलू, है ना, अफअलू नफअलू। तो इस तरीके से, और फिर उसके आगे आगे पढ़े सबसे पहले। जी, सबसे पहले ये नोट करें कि अरबी जुबान अपना में माइक म्यूट कुछ कर लेना हरूफ मेरी बहन, आपको पता है आपका माइक ठीक नहीं है, आवाज इधर उधर जाती है फिर। सबसे पहले ये नोट करें, कि अरबी जुबान में कुछ हरूफ ऐसे हैं जो फेले मुदारे से पहले आकर फेले मुदारे की शक्ल तब्दील कर देते हैं। हम्म, यानी फेले मुदारे की गर्दान के मुख्तलिफ सेगों में कुछ तब्दीलियां वाक़या होती हैं। इन मुख्तलिफ तब्दीलियों को समझने के लिए हम फेले मुदारे के किसी भी गर्दान को तीन किस्म के सेगों में तकसीम कर लेते हैं। अच्छा होता क्या है, जैसे इस इसम जो अपनी डिफॉल्ट एंडिंग एंडिंग में किससे होता है, तालिबुन होता है ना, जी, ठीक है ना, तालिबुन, कोई भी इसम ले लें जी। और वो इस ये उसकी डिफॉल्ट एंडिंग होती है, ठीक है। अब ये पैदा हुआ है नया नया, अब इस पहले फलाम भी नहीं आया, जैसे बच्चा दीने फसल पे। अब जब ये इसके ऊपर दो जबर आएंगे या दो जेर आएंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे, खुद ही आ नहीं, जाएंगे कुछ तो तालिबुन। कुछ तो पीछे नहीं, आएगा नहीं। ना जो चेंज करेगा, माहौल का असर तो होगा ना उस बच्चे के ऊपर।
जो दीन फितरत से जी आमिल पैदा हुआ है। आमिल आएगा जी ना। अब आमिल की बगैर ये नहीं चेंज होगा। जब इन्ना लाते हैं तो इन्ना तालिबन बनता है ना। जी उस्ताद। ठीक है। इसी तरह हुरूफ जारा लाएंगे तो वो मजरूर होगा ना, या मुजाफ इलैह जी बनेगा तो मजरूर होगा ना। जी जी किताबु तालिबिन, तो तालिबिन, तालिबुन से तालिबिन क्यों हो गया? क्योंकि पीछे मुजाफ आ रहा है, आमिल आ रहा है। जी ठीक है। या फेल आएगा तो उसका फाइल बनेगा, या मफूल बनेगा, तो वो चेंज होगा ना। तो ये फाइल जो पीछे फेल होता है ये भी आमिल होता है, मुजाफ जो होता है ये भी आमिल होता है, अलिफ लाम जो होता है ये भी आमिल होता है, तनवीन को गिरा देता है। तो आमिल जो होते हैं तकरीबन 100 आमिल होते हैं, उनको अवामिल कहते हैं। जो इसम के ऊपर अल्लाह आके तब्दीलियां करते हैं और फेले मुजारे पे आके तब्दीलियां करते हैं। माजी पे तब्दीली नहीं होती, फेले अमर पे तब्दीली, ये सब मबनी होते हैं। मबनी अस्मा पे कोई तब्दीली नहीं होती, वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। लेकिन जो भी इसम होगा ना जिसपे तनवीन आती है वो 3 शक्लें बदली करेगा। जिसके ऊपर तनवीन नहीं आती, एक पेश आती है, वो 2 शक्लें बदली करेगा। जो मबनी होगा वो फिक्स्ड होगा, मबनी जी होगा फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शक्ल ऐसी नहीं बदली हो जाती, चाहे इसम की हो चाहे फेल की हो, उसके पीछे कुछ हुरूफ आते हैं। जी ठीक है ना। ये देखें आकर, कुछ हुरूफ ऐसे हैं, अरबी जबान में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो फेले मुजारे से पहले आके फेले मुजारे की शक्ल तब्दील करते हैं। असल शक्ल क्या होती है जो माजी से बनती है? वो होती है जैसे आपने बनाई मद दाराबा, दाराबा से क्या बनाया? यद्रिबू। यदरिबु। यदरिबु। हाँ, तो ये उसकी असली शक्ल है। और जी ये क्या है? इस पर पेश आ रहा है। अब ये यद्रिब कब होगा? ठीक है। सुकून कब आएगा? पीछे रूफे जाजमा में से कोई आएगा ना तो मजजूम करेंगे। जी और जी जबर लम। कब आएगा? यद्रिबी कब आएगा? जब रूफे नासबा में से कोई आएगा। बस नासिबा से कुछ आए। इतनी सी कहानी है। ठीक है। जी पेश गिर जी जाएगी और वहां पे जज्म आ जाएगी या जबर आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि फेले मुजारी के गर्दान को हम 3 किस्म के सीगों में तब्दील करेंगे। पहली किस्म जी के सीगे पेश वाले हैं। अगर जी जिसको गर्दान याद है उसी को ये समझ आएगी बात कि ये पेश वाले सीगे हैं सारे, इनका एक ग्रुप बन जाएगा। दूसरे वो हैं जिनके आखिर में नून आता है। और नून कितने सीगों में आता है? ये 7 सीगे हैं नो नून तो। में सात हाँ, सात। 9 में ही आता है, 9 में आता है, वो सही बात कर रही है। 2 ये भी है ना। जी हाँ, वो नून निस्वा के दो सीखे। जी हाँ, तो इनमें तो तब्दीली नहीं आती, नहीं ये मबनी होते हैं, इसलिए इनको अलग जी कर दिया है। ये तो टस जी से मस जी नहीं होंगे ना। ये वाले जो है जी ना, ये इनका नून जो है इस पेश की तरह होता है। जैसे ये पेश जी गिरता है इसी तरह ये नून भी गिरता है इनका, इसको नून एराबी कहते हैं। यानी ये जी एराब है और पीछे से कोई भी हरफ आएगा, चाहे जज्म देने वाला या नस्ब देने वाला, तो इस नून ने गिर जाना है। इसमें क्या होगा? अगर कोई हरफ आएगा जज्म देने वाला नस्ब देने वाला तो इसका पेश गिरेगा। इनमें नून चूंकि पेश के बराबर है तो वो गिर जाएगा। ठीक है। इनमें तो कुछ भी नहीं होना, ये मबनी है, एक ही शक्ल में रहते हैं, एक ही ड्रेस है इनके पास। तो 3 तरह के हो गए। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे यहां से। जी। हम्म, फेले मुदारे जब खफीफ या अखफ होता है तो इन 3 किस्मों के सीगों में क्या तब्दीलियां वाक़या होती हैं, और वो कौन कौन से हुरूफ हैं जो फेले मुजारे को खफीफ या अखफ करते हैं? इन सवालों के जवाबात के लिए अब हम बाकायदा इन उन्वानात का मुतालिया करते हैं। अच्छा, जिनको खफीफ और अखफ की समझ नहीं आ रही ना, वो समझ लें कि ये मंसूब है, और ये मजसूम है। ये मजजूम है। मंसूब जो होता है वो आपको पता है जबर के साथ होता है, और मजजूम जज्म के साथ। फेल कभी मजरूर नहीं होता, ये याद रखना। जी फेल कभी क्या नहीं होता? जेर नहीं आती। इसम मजरूर होता जी है, रफा नस्ब जी जर। लेकिन ये क्या होता है? या तो रफ़ई हालत में या नस्बी में या जज्मी में होता है। अभी मुजारे मंसूब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। जी। खफीफ या मंसूब पढ़े। मुजारे खफीफ। मुजारे खफीफ फेले मुजारे जब खफीफ होता है तो मुजारे के 3 किस्म के सीगों में जो तब्दीली वाक़ा होती है वो दर्जा झील है। हम्म। पहले किस्म के सीगों में लाम कलिमे पर आने वाली पेश जबर में तब्दील हो जाती है, हम्म। यानी यफ़अला, हम्म। तफ़अला, तफ़अला, अफ़अला, नफ़अला। ऐसे ही तब्दील हो जाती है। या फालू से तो नहीं या फला हो गया, कोई आएगा ना पीछे। नहीं
जी फिर जी बीच जी में। सूफे नासबा पीछे होंगे तो उरूफ नासबा आएंगे तो वो हम अभी पढ़ेंगे। जी फिर दूसरी किस्म के सीओ में क्या तब्दीली होती है? दूसरे किस्म के सीगों के आखिर में आने वाला नून गिर जाता है, यानी हाँ यफ़अला तफ़अला 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 यफ़अलु तफ़अलु तफ़अली। हाँ, यहाँ पे भी नून गिरा हुआ है, यहाँ भी नून गिरा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। ये नूने अराबी वाले सीगे थे। नूने अराबी गिर जाता है। ये जो नूने जमीरी होती है या नूने फाइली होती है या नूने निस्मा होती है, ये नहीं गिरती। ठीक है, ये नहीं जा गिरती क्योंकि ये फाइल होता है। मैंने बताया फाइल कभी फेल से जुदा नहीं होता। यहाँ भी फाइल जी फेल से जुदा नहीं हुआ। ना इन जी सीओ में फाइल फेल से जुदा हुआ है, ना इन सीओ में फाइल फेल से जुदा हुआ है। क्योंकि ये फाइल था ही नहीं, जुदा कर दिया तो भी क्या, ये तो एराब था ना, नूने अराबी था जी ना। ये तो जुदा हो गया तो क्या हुआ, फाइल तो साथ ही मौजूद है ना। यहाँ भी फाइल साथ है, यहाँ हुआ है, यहाँ तफलू में हिया है, यहाँ तफलू में अंत है, यहाँ फलू में अना है, नफलू में नहनु है, फाइल साथ ही है। तो जी फाइल नहीं गिर सकता। अब यहाँ पे नून चूंकि अराबी नहीं था, एराब नहीं था, वो दमा नहीं था, यहाँ पे नून फाइल था, इसलिए वो नहीं गिरा। अब समझ आ गया आप लोगों को? जी उस्ताद साहब। इनको कोई जिद नहीं है, इनको कोई जिद्दी नहीं है। ये कहती हैं बस हम, हमारा ये फाइल है तो हम इसको गिराना नहीं चाहते। ठीक है, फाइल हमें चाहिए ही चाहिए। फेल के साथ फाइल नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा किसने काम किया? फाइल तो मस्ट 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 होता है ना हर फेल का। अच्छा, अब ये जी हुरूफ कौन कौन से आप देख लें, आप फेमिलियर हैं इनसे? कौन है सिद्रा, आप वाकिफ हैं इन हुरूफ से पहले, या पहली बार आप पढ़ रही हैं ये? जी टीचर सुने हुए हैं कि ये बस मुजारे ठीक है, को इतना ही काफी है, चलो जबर सही। जी कुछ पढ़े आप सिद्रा, आप ही पढ़ लें यहाँ से। कुछ हरूफ ऐसे हैं। जी टीचर, कुछ हरूफ ऐसे हैं जो मुजारे के शुरू में आ जाएं तो मुजारे को खफीफ कर देते हैं। हम्म ये हरूफ दर्ज झेल हैं: लन, अन, कई, इज़न, हत्ता और दी। हम्म मुंदरजा बाला हरूफ में से पहले चार असलन मुजारे को खफीफ करते हैं, जबकि आखिरी दो के बाद अन हरफ माजूफ समझा जाता है, जिसकी वजह से मुजारे खफीफ होता है। इन हरूफ की तफसील दर्ज झेल है। अब तफसील नीचे आ रही है, ल- ठीक है, एक एक की तफसील बताएंगे। इनके मानी क्या है, ये कैसी तब्दीली करते हैं, मानवी करते हैं या लफ्जी करते हैं। तो दो तरह से तब्दीली होती है ना, एक मानों में तब्दीली होती है और एक लफ्ज में तब्दीली होती है। सही है। यहाँ पे लफ्ज में जी तब्दीली नहीं हो रही, यहाँ मानों में तब्दीली हो रही है। यहाँ ऊपर जो था ये लफ्जी तब्दीली भी हो रही है और मानवी भी हो रही है। ठीक है, अब आप देखें तो अब यहाँ पे जो बात बताने वाली है वो ये कि ये चार जो है ना, नून से जो आ रहे हैं चार, ये लन, अन, कई, इजन, ये जो है असली है, मुजारे को खफीफ करते हैं, असलन है। लेकिन ये जो है खुद नहीं करते, बल्कि इनके बाद अन आता है जो कि हिडन होता है, वो कर रहा होता है। मुजारे से पहले ये आते हैं इनकी तरह, लेकिन मुजारे और इनके बीच में अन छुपा होता है जो कि खफीफ करता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हरफ माजूफ, अन जो हिडन है। माजूफ का मतलब क्या होता है, जो ओमिटेड है, जो माजू जो हिडन है। अच्छा, अब लन के बारे में पढ़े। जी टीचर। हम्म लन, हर्फ लन के अपने कोई अलग माना नहीं है, लेकिन जब ये फेल मुजारे पर दाखिल होता है तो इसमें दो तरह की मानवी तब्दीली लाता है। हम्म इसमें जोरदार नफी का मफहूम पैदा हो जाता है। नंबर दो, इसके माना मुस्तकबिल के साथ मखसूस हो जाते हैं। हम्म यफ़अलु, वो करता है या करेगा। लन, हम्म लन यफ़अलु, वो हरगिज नहीं करेगा। तो लफ्जी तब्दीली भी तो आई है ना, एराबी तब्दीली भी आई है, लफ्जी तब्दीली और मानवी तब्दीली भी आई है। मानवी तब्दीली में जोरदार नफी हर गिज नहीं का मानी। ठीक है ना, वो करता है या करेगा, या फलू सिंपल मुजारे होगा तो या फलू वो करता है करेगा, लेकिन जब लन आ जाएगा तो वो हर गिज नहीं करेगा। और फ्यूचर में मानी हो गया है। अब देखें, यहाँ करता है करेगा दो मानी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही मानी हो रहा है। तो जोरदार नफी और मानी मुस्तकबिल के साथ मखसूस हो जाएंगे। और एराबी तब्दीली भी आएगी, वो मंसूब कर दे क्योंकि रूफ नासबा में से है ना, तो मंसूब करेगा। अब ये इसकी सारी मिसालें हैं। लन नस्बिरा, ठीक है। लाइन यखलु, ये असल में क्या था, कौन बताएगा? जब भी आएंगे ना ये हरूफ तो आगे इनके फेल होगा, और फेल कौन सा होगा? यखलकूना था, यखलकूना था।
अच्छा यख अच्छा, नो यखलुक ये जो अभी हम हरूफ पढ़ने जा रहे हैं, नास्मा जाजमा, इनके बाद कौन सा फेल आता है? फेल मैम मुदारे मुजारे आता है। हमेशा हम्म मुजारे आता है, ये माजी पे नहीं आते। जी चाहे आप नास्बा हरूफ हैं हमने पढ़े हैं अभी, चाहे आगे जाजमा पढ़ेंगे, ये सब मुजारे से पहले आते हैं। ठीक है, तो आप देखें हर एक के बाद मुजारे ही है। हम्म नस्बिरू था लेकिन लन आया तो लन नस्बिरा आ गया, यहाँ पे यखलुकूना था तो लन लगाया तो यखलुकू हो गया, नून गिर गया। नून होगा तो नून गिरेगा, ठीक है, और पेश जी होगा तो पेश गिरेगा। समझ आ रही है ये बात? और जी मुजारे क्या हो जाएगा, इस हर्फ को देख के डिसाइड करेंगे। ये खफी नासबा, हाँ तो मंसूब हो गया। मंसूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये मुजारे ही है लेकिन इसके पीछे कोई हरफ नहीं आ रहा, तो ये अपनी असली हालत में है। जी ये रफई हालत में, अगर नून मौजूद है तो वो क्या बिसबूती नूनी क्या है, वो रफई हालत है। मुरफ़ई ठीक मरफू है, हाँ, नून साबित है ना, मौजूद है ना यहाँ पे, तो ये जी रफई हालत है। इसी तरह अगर पेश है, तो पेश लगा हुआ है किसी के ऊपर, तो वो भी आपका क्या है आखिर में, तो वो भी आपकी रफई हालत है। लेकिन अगर गिर गया नून तो फिर पीछे हरफ को देखें कि लन आ रहा है या जाजमा में से या नासबा में से, जो भी आएगा। अब यहाँ पे देखें, मुझे ये वाला आ रहा है, इसमें असल में क्या था ये? यदखुलू हाँ, अब लन लगने से यदखुला हो गया, और ये यखलुकूना था, आपने यहाँ जबर पड़ी थी। अच्छा, उसके जी जी बाद कोई बात नहीं है, हुदन सारा बुरहाना। तो फिर सादिकीन क्या से है, फेल है या इसम है? सादिकीन क्या है, फेल है या इसम है? इसम इसम है मैम। इसम इसम है, तो ये पहचान भी होनी चाहिए, ठीक है, कि ये आप हर्फ आ रहा है तो मुजारे क्या है, मुजारे को या जिसके शुरू में या ता अलिफ नून लग जाता है वो फेल मुजारे होता है। तो ठीक जब है। हम इसका करेंगे तर्जुमा करेंगे, जैसे लन यदखुला वो हरगिज दाखिल नहीं होगा। जन्नत अच्छा में। और उन्होंने कहा हरगिज दाखिल होगा, लन के साथ अच्छा नफी का मानी होगा ना, हरगिज नहीं दाखिल होगा जन्नत में, इल्ला मन, मगर वो क्या हो, यहूदी हो या नुसरानी हो। और फिर ये आयत अच्छा हम पढ़ चुके हैं सूरह अल बकरा में, तिल का अमानी यू हम, याद आया कुछ? और जी फिर जी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहिए हातु बुरहानकुम, जी दलील लाएं, इन कुन तुम सादिकीन, अगर वो जी सच्चे हैं तो हाथू बुरहानकुम, वो लाएं अपनी दलील। तो मैंने क्या कहा था, ये हरफ शर्त है और ये शर्त है और ये पीछे वाला जवाब शर्त है। ठीक है। जी तो जी ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, जी तो हर चीज रिलेटेड है ना। अच्छा, आगे क्या है, यहाँ पर ये यनफा उ, यनफा आ हो गया ये, ठीक है ना। आपने किसको देखना है, मुजारे को देखना है, जमीर को नहीं देखना। जमीर तो कुम है ना, उसको नहीं देखना। यनफा उ किस में चेंज हो गया है, यनफा आ में चेंज हुआ है। यनफ़ा और जमीर तो कुम थी ना, तो अब ये मिलाने के लिए जब कुम जमीर होती है या अंतम होती है तो उसको आगे मिलाना हो, तो फिर उसको पेश दे के मिलाते हैं, तो ये दो दो पेशें आ गई। तो इन चीजों को समझना है आपने। समझ आई मैंने क्या कहा है? यनफा ऊ था, यनफा आ में चेंज हुआ लन की वजह से। ठीक है, मुजारे मंसूब हुआ है। और जी कुम जो थी वो कुमुल फिरारू हो गई। वो पढ़ने उसके, के लिए हाँ, वो पढ़ने के फिर लिए हुई है, ठीक है ना। अब आगे जी क्या है, यहाँ पर भी तनफा ऊ किस में चेंज हुआ है, तनफा आ में चेंज हुआ है। जी ठीक जी है। इसके मीनिंग और होंगे और उसके मीनिंग और होंगे। इसका क्या मीनिंग होगा, यनफाकुम, हरगिज नहीं, तुम पहुंचेगा, तुम सब फायदा फायदा पहुंचेगा। तुम नफा वो अनफा फायदा देगा तुम, पहुंचाएगा तुम्हें। नफा देगा तुमको। नफल अलफिरारू, फिरार, फरार होना। इन फरार तुम मिनल मौती, ठीक है ना, जी मिनल मौती अविल कत्ली व इजन। अब ये तो बाद में है ना, आपका तर्जुमा थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बाज लोगों का होता है अच्छा। अब यहाँ पर देखें, यह आपका सिर्फ इतने से मतलब है, जहाँ पे लन आया है उसने उजारे को मंसूब कर दिया, यहाँ पर भी उसने ऐसे किया। और हरगिज नहीं नफा देगा तुमको अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामत। अरहामुकुम क्या होता है? अरहाम तो रहम की जमा है ना, रहम क्या होता है, माँ का जो वूम होता है उसको रिश्ते रहम रिश्ते बोलते हैं। हाँ, रिश्ते, यूट्रस। रिश्ते रिश्तेदारियां तुम्हारी, और ना तुम्हारी औलादें यौमल, ये चीजें फायदा नहीं देने वाली। ये चीजें उस वक्त हमसे दूर भागेंगी।
کہ हमसे कुछ मांग ना लें। दुनिया में दूर भाग रही हैं तो वहां तो बिल्कुल ही भागेंगी ना। ऐसा ही है ना, औलादें कहाँ चली गई हैं? अगर औलादें नहीं छोड़ती तो उनके आगे वाले बच्चे छोड़ जाते हैं। चले, अन आ गया। पहला वाला हमने क्या लफ्ज पढ़ा? लन। दूसरा क्या है? अन। लन के बाद अन आ गया। अब आप इसको पढ़े। कोई और पढ़ना चाह रहे हैं अन के बारे में? एक एक अर्थ को पढ़ते जाए, जल्दी जल्दी आए, माइक में कोई बोलना शुरू कर दे। मस्तर। हम्म, इसे हर्फ से मैं ही पढ़ दूं फिर। पढ़े इसे ना, हर्फ पढ़े। मस्दर कहते हैं क्योंकि ये फेल के साथ मिलकर मस्दर के मानी देता है। मसलन अमरतुहु अन यज़हबा, हम्म मैंने उसे जाने का हुक्म दिया। हम्म, अमरनल्लाहु अन नअबुदहु, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत करने का हुक्म दिया। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहु बकरतन, बेशक अल्लाह ताला एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। असा अन तकरहु शैअन वहुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन वहुव शर्रुल लकुम एक सेकंड रुक वल्लाहु जा, यअलमु व अंतुम। एक जी जी। सेकंड रुक जा। यहाँ पे हो क्या रहा है? अन के बारे में पढ़ रहे हैं। अन को क्या कहते हैं? हरफु मस्दर कहते हैं। ठीक है, हरफु मस्दर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मुजारे के ऊपर आता है ना क्या अन, तो ये मुजारे ये को वन मस्दर वर्ड? मस्दर के मानी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हरफु मस्दर कहते हैं, अन को। ये अन हमने अन लन पढ़ा है ना, लन अन कई, यही पढ़े हैं ना रूप। जी। अन और क्या था? कई अन और अन कई इजन। इजन। अब इजन जो है ये हमने चार पढ़े। इजन तो कुरान में आता नहीं, इसलिए इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीन जो है लन। अब अन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अन को क्या कहते हैं? हरफू मस्तर कहते हैं, क्योंकि जब ये मुजारे आता तो आना तो इसने मुजारे पे ही है, और मुजारे को मंसूब भी करना है, लेकिन एक काम और करता है, वो ये कि इसको मस्तर में मानी में चेंज कर देता है। ये फेल के साथ मिलकर मस्तर के मानी। मस्तर क्या होता है? काम का नाम। काम का नाम होता है। वेरी गुड। तो आई यजहबा क्या बन जाएगा? अमरतु हूँ, मैंने हुक्म दिया उसको। किस चीज का? जाने का। जाने का जाने। हुक्म दिया। अब जाना क्या है? मस्दर है। अब इसका तर्जुमा तो जाना नहीं होगा ना, इसका तर्जुमा क्या होगा? कि वो जाए। कि हो जाए। लेकिन जब इसका मस्तरी मानी लेंगे, वन वर्ड का मीनिंग इसका मस्तर का, तो जहाबन आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाबन आएगा। जहाबन, जहाबा यजहबु का मस्तर मस्तर है। तो ये वन वर्ड में यानी मस्तर में चेंज हो जाता है। तो अमरतुहु जहाबन, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। तो दोनों तरह से मानी में कोई फर्क नहीं आता कि वो जाए। आई यजहबा, तो ये है, तो इस मस्तर में। इसी तरह अमर अल्लाहु, हुक्म दिया हमको अल्लाह ने। इसमें ना जमीर क्या बनेगी सिदरा? ना जमीर क्या बनेगी? जी टीचर। क्या बनेगी ना जमीर? हमारा, उसने हुक्म दिया ना हमें। हम्म, टीचर मफऊल, हुक्म मफूल। देने वाला अल्लाह है और ना हम। हम लोग हैं मफूल, जिसको हुक्म दिया जा रहा है, जिसपे फेल का असर पड़ रहा है, वो मफूल होता है। और किसने हुक्म दिया? जी फाइल, अल्लाह हो। अन अल्लाह नाबुदा, ताला ने। अन के साथ मुजारे आ गया नाबुदा। नाबुदू था, और अन आने की वजह से क्या हो नाबुदा गया? हो। नाबुदा हो गया। कि हम इबादत करें उसकी। उसकी। हाँ, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत करने का हुक्म दिया। यानी अगर लफ्जी तर्जमा करेंगे तो हुक्म दिया हमको अल्लाह ने कि हम इबादत करें उसकी। जी। तो अगर मस्तरी मानी करने का तो इबादत करने का हुक्म दिया, कि हम इबादत करें उसकी, और इबादत करना, यहाँ पे मस्तरी मानी आ रहा है। दोनों जी। तर्जुमे कर सकते हैं, दोनों सही होंगे इंशाल्लाह आपके। सही है। अब मफहूम। इसमें भी ऐसे ही, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहु बकरतन, तो इसमें आपका इन्ना आया है, ये अन है। ठीक है, ये इन्ना है। असल में ये जी अन्ना होता है ना। जिस तरह अन्ना जुमले को जुमला नहीं रहने देता ना, मस्तर के मानी में चेंज कर देता है। तो वो तो इस जुमला इस्मिया पे आता है ना अन्ना तो। इन्ना अन्ना जुमला इस्मिया पे आते हैं, जैसे यहाँ पे भी ये भी जुमला इस्मिया पे आ रहा है। तो अन्ना भी जुमला इस्मिया पे आता है, लेकिन जब फेलिया पे लाना होता है तो उसको हम अन कर देते हैं। जैसे अभी वलाकिन्ना को भी हमने क्या किया था? फेल पे लाना था तो वलाकिन कर दिया था ना। जी। आप उसको वलाकिन्ना पढ़ रहे थे।
اگر ولاکنہ لاتے نا وہاں پہ تو آگے جملہ اسمیہ لانا پڑتا، ہم نے لانا تھا جملہ فعلیہ، تو ہم نے اس کو ہلکا کر دیا، اس کا اعراب خفیف کر دیا، یعنی اس کی تشدید کو ہٹا کے جزم دے دی۔ تو یہاں پر اب یہ کیا ہے، انا ہے، ان یہ شروع میں آتا ہے، یہ درمیان میں آتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اب یہ تذبحون تھا، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، جب وہ آ جائے نا جی ہاں تو پھر نون گرتا ہے، اور جب نون گراتے ہیں تو فوراً ایک الف ایڈ کرتے ہیں، فوراً، جی یاد ہے نا؟ اور یہ کیا ہو جائے گا، بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے تم کو، فائل کیا ہے، ہوا، کیونکہ اب فائل سے بھی کام چل جائے گا نا، آگے اسم فائل دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یا امرو، آگے پھر اللہ لاتے، نہیں، یحمر اللہ کم، یہ غلط ہو جاتا، یا یحمرکم اللہ، تو ایک دفعہ نام آ جاتا ہے تو پھر ضمیر کو فائل بناتے ہیں، پھر اسم زائد فائل نہیں آ سکتا۔ اب یہ ضمیر در لوٹے گی، یحرم، وہ حکم دیتے کہ تم ذبح کرو، تم سب ذبح کرو ایک گائے کو، ایک گائے کو ذبح کرنے کا تم سب کو حکم دیا گیا، ہر ایک نے ایک گائے ذبح نہیں کرنی، بلکہ سب نے مل کے ایک گائے ذبح کرنی۔ اسا ان تکرہو، ان آ گیا تکرہو، تکرہو ہے یہ، اور یہ تکرہو کیا ہے بتائیں مجھے، تکرہونا تھا یا نہیں تھا؟ ان آیا ہے نا، تکرہونا ہوگا نا، تبھی تو نون گرا ہے اور پھر الف ایڈ ہوا ہے۔ جی تکرہونا نون گر گیا۔ تم سب کرو، تم کیا کرو، تم سب کراہت کرو ایک چیز سے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ایسا ہوتا ہے نا، نماز پڑھنا اچھی نہیں لگتی، صبح اٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہ چیز ہمارے لیے بہت بہتر ہوتی ہے۔ آپ ذرا جلدی اٹھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا آپ کے کاموں میں کتنی برکت ہوتی ہے، وقت پہ نماز بھی ہو جائے گی، بلکہ تھوڑا اور پہلے اٹھ کے دیکھیں۔ میری اذان ہوتی ہے آج کل 5:10 پہ نا، اور میں 3:45 جاگی ہوتی ہوں، اس کے لیے وقت پہ سونا بھی پڑتا ہے، اور میری اتنی عادت بن گئی ہے کہ میں وقت پہ نہ بھی سوں تو میری آنکھ اسی ٹائم پہ کھلتی ہے، 3:45 پھر میں فجر سے پہلے اٹھ کے پہلے نماز وغیرہ اور پڑھ لیتی ہوں، پھر فجر پڑھتی ہوں، پھر ناشتہ کرتی ہوں تھوڑا، پھر آپ کے پاس آتی ہوں پڑھانے کے۔ میرے پاس کافی کھلا ٹائم ہوتا ہے، میں اپنے سارے میسیجز کا جواب دے لیتی ہوں، اتنا، اور بھی جو مجھے کام کرنے ہوتے ہیں وہ کرتی ہوں، تو کچھ دن کو نکالنا ہے پکانے کے لیے، مہمان آنے ہیں، وہ میں سارا انہی ٹائم سے بیچ میں ٹائم میں کر لیتی ہوں تو اتنی برکت ہو جاتی ہے ٹائم میں۔ تو اگر آپ اٹھیں ہی آخری وقت پہ، نماز ختم ہونے کا ٹائم ہے، سورج نکلا، نماز بھی جلدی جلدی، سب آگے بھی وہی، سستی الگ ہوتی ہے، تو کوشش کریں، ہے نا، جلدی سوئیں، جلدی، بچوں میں بھی یہی عادت ڈالیں۔ یہاں پہ کینیڈا میں نا بچے 8، 8:30 کے بعد بچے نہیں جاگتے، سب بچے بیڈ میں ہوتے ہیں، سب بچے بیڈ میں ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بچے سوتے ہی نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ سوتے ہیں، ماں باپ 12 بجے سوتے ہیں، بچے بھی 12 بجے 2 بجے سو رہے، آرڈر ہو رہا ہے سب کچھ کھانے کے لیے باہر سے، اور وہ آتا ہے پھر دوبارہ بچے کھاتے ہیں پھر سوتے ہیں۔ تو بچوں کے آتے ہیں آپ نے خود ٹھیک کرنی ہے، وَهُوَ خَيْرٌ، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ چیز تمہیں کراہت کرتی ہے لیکن وہ ہوتی تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور کبھی ہم ایک چیز سے محبت کرتے ہیں، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، ہمارے لیے وہ اچھی نہیں ہوتی، مٹھائی ہمیں اچھی لگتی ہے، بیکری کی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہے نا، لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، بیکار ہوتی ہے ہمارے لیے۔ جو اتنا آج شوگر کا پیشنٹ اور کینسر کا، وہ سارا اسی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، تو دین فطرت پہ آئے، اور انشاءاللہ انشاء خیر سکتے خیر ہیں، صحیح ہے نا سدرا؟ اللہ، لوگ ہو رہے ہیں کلوز اللہ تعالیٰ سے، اب تو گورے بھی صبح اٹھنے جی لگے ہیں، ہندو بھی اٹھنے لگے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بڑے ٹائم میں مزے ہے اس میں۔ اچھا آگے کیا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور البقرہ 216 ہے، ابھی پڑھیں گے ہم اس کو انشاءاللہ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ہاں، یہ جنگ اوپر والی آیت سے کنیکٹڈ ہے نا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اور اس لیے ہم استخارہ بھی کرتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ دعا میں کیا ماننا چاہیے، اللہ یہ تعالیٰ مجھے دے دے، ہمیں تو نہیں پتہ یہ ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے خیر ہے تو مجھے عطا کر دے،
अगर शर है तो दूर कर दे, क्योंकि मैं नहीं जानता ना। वल्लाहु यालम, वल्लाह जानते हैं। अच्छा जी, अर्रिबा, अर्रिबा क्या होता है? ये सूद, सूद, हम्म, सूद होता है। सब सूद। ऊना हुबन, उसमें कितने होते हैं? 70 गुना होते हैं। ऐसरूहा, ऐसरूहा अयन कहा रजुलु उम्मा हो। सबसे जो उसमें कम तर जो है ना, उसका जो गुनाह है वो ये है कि अपनी माँ से क्या करे, वो निकाह करे। ना के आगे क्या है इसमें, अब आपका क्या है बताएं कुछ। अन आया है ना, यन का हा आया है। यन का हु, यन के हु होता है, और यन का, यन के यन की हा है। अच्छा, न का यन यन का हु से दो तरह के मानी लिए जाते हैं। ये बात कौन सा है ये वाला, बताइए जरा। न कहा यन के, यन के हु कौन सा बाब है? दरबा दरबा। यदरिबु। ज़राबा यदरिबु। हाँ, न कहा न कहा यन के हु, ठीक है। तो यन की हु जो है मुजारे है, और अन के साथ आ रहा है कि वो निकाह करे, निकाह करे, खुद निकाह करे। सही है, क्योंकि ये दो मानों में आता है ना। अन का हा यन का हु का क्या मतलब होगा अगर बाब फाल में ले जाएं तो? अन का हा यन के हु, ये अफला है ना, और यन के हु। अब इस बाब में इसके क्या मानी होंगे? ये जो था उसने लाजिम निकाह। बाब था, ये लाजिम था खुद निकाह करे। तो ये किसी और को निकाह हाँ, करके। निकाह करके दे। अच्छा। यहीं से तो वली का हुक्म निकलता है ना कि निकाह करके दो। वली के बगैर निकाह नहीं होते। आजकल बच्चे कर लेते हैं ना बाहरी रिवाज हम्म। शादियां। वली, लड़की का खास तौर पे वली का मौजूद होना बहुत जरूरी है, वहां पे प्रेजेंट होना। अगर बाप मौजूद है तो वो होगा, नहीं तो चचा होगा, या फिर क्या होगा, मामू होगा। ये रिश्ते हैं जो वली बन सकते हैं। औरत वली नहीं बन सकती चाहे माँ क्यों ना मौजूद हो। वली हमेशा मर्द होता है। तो जो निकाह वली के बगैर होता है वो निकाह नहीं होता, वो हराम होता है रिश्ता। तो अन का हा ये मुताद्दी है। मैंने एक दफा हदीस पढ़ी थी कि जो औरत अपने वली के बगैर निकाह करती है वो जानिया होती है। जानिया होती है ना, जी। घर से बाकी शादियां कर लेते हैं, वली है ही नहीं, इजाजत ही नहीं है। तो नकाहा यनकाहु, नकाहा का मतलब है कि वो खुद निकाह करे। और यहाँ पे फाइल कौन है? हुआ नहीं है, आदमी है। आदमी निकाह करे अपनी माँ से, उम्मा हो, अपनी माँ से। ये सूद का सबसे कम दर्जा है। ऐ सरऊ, ऐ सरूहा। अब यहाँ पर ये लाजिम है, इसका मतलब है वो निकाह करे, खुद निकाह करे। जैसे अलीमा होता है ना, अलीमा का मतलब क्या है? उसने इल्म हासिल किया, खुद किया ना। अल्लाह माँ क्या होता है? अल्लाह माँ में भी यही होता है, लेकिन जब आप अल्लाह माँ कह देते हैं ना तो फिर दूसरे को सिखाना होता है। हम्म। ताल्लमल कुराना, कुरान दूसरों को सिखाए। पहले क्या करे? अल्लाह मल कुराना, खुद सीखे, और फिर ताल्ला माँ क्या है? दूसरे को सिखाए। तो यही मतलब होते हैं जब आप चेंज होते हैं तो। अन का हा का मतलब है वो अपनी बेटी का निकाह करके दे, या उसने निकाह कर दिया अपनी बेटी का, निकाह करके दिया अपनी बेटी का अपने भतीजे को। यानी बेटी का निकाह किया अपने भतीजे से, या अपने बेटे का निकाह किया अपनी भतीजी से, दोनों तरह से हो सकता है। तो अनकहा का मतलब है निकाह करके देना, किसी और का निकाह करना, अपनी बेटी का या बेटे का वो करना। और यहाँ है अपना निकाह करना। तो यहाँ पे अपने के मानी आ रहे हैं, क्योंकि ये सुलासी मुजरद है और ये मजमून। इसका क्या होगा बात, इसका क्या बनेगा? मस्तर क्या बनेगा? अनकहा यन की हूँ। अब इसका देखना पड़ेगा इसका क्या बनता है। अब ये जो है ना आजकल, मुझे एक मिनट देखने दे जरा। शादाब भी इधर उधर होती हैं, पता नहीं कहाँ क्लास में आके गायब हो जाती हैं। फिर मैं पूरी नजर रखती हूँ आप लोगों पे, कौन है इनका क्लास में रहता है। मैं निकाल दूंगी कोर्स में वैसे से देखिए फिर। रूट वर्ड। हाँ, इसका आप देखें, रूट वर्ड नून का फा से और बाब फाल से इसका मस्दर क्या आएगा?
वैसे तो इस पे आना चाहिए ना, इफालत, इफाल उनके वजन पे आना चाहिए। इनका हन ये होगा शायद। अच्छा, उसके बाद अगला देखते हैं, अल एहसानु, एहसान क्या है? एहसान क्या है? एहसान हम कहते हैं ना, मैं बड़ा एहसान किया तूने मेरे ऊपर, है ना? ये एहसान जो होता है ना, ये नेकी का एक्सीलेंट लेवल होता है। अंता बुदा, के तू इबादत करे अल्लाह की। कैसे इबादत करे? का अन्ना का तराहू, गोया कि तू क्या है, तू उसको देख रहा है। ठीक है, सही बुखारी की हदीस है ये। एहसान क्या होता है? यानी किसी काम को भी एक्सीलेंट लेवल पे करना है। कोई मिस आपके इसका साथ बाप मिस बता। इसका 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 बाप जो है इस्तफआल है, और इस्तनकफा, हम्म, हम्म, यस्तनकिफु, हम्म, अ, इस्तनकफन, हाँ, बाई से नंग होना, आर समझ कर रखना, उसको छोड़ आर देना। समझ कर का रुकना। मस्दर नखन। नक हन तो इसका होगा ना, ये वाले का क्या है? बाब अन, नसरा से है, बाब नकफा, इकफाल, यन। हाँ, नसरा से भी आता है। इनका हन है इसका। हाँ, इन कहान हो गया ना, बस खत्म हो गई हम्म बात। सही है, मुझे इसी जी का चाहिए था, इन कहान हो ओके गया बाब इकफाल से। जी बाकी तो ये बहुत सारे बाबों से आता होगा, उनकी फिर मानी भी अलग अलग है। सिर्फ निकाह का मानी जो आता है ना, वो यहीं से आ रहा है, दो से आ रहा है। नकाहा का मतलब है यनकिहू, बाप दरबा से होगा तो ये लाजिम होगा। और ये क्या है? खुद अपना निकाह करना, और ये किसी और को का निकाह करना, जैसे बाप बेटी का निकाह करता है या बेटे का करता है। खुद तो नहीं करता, लेकिन करवाता तो है ना। बेटे के लिए इतनी वली की जरूरत नहीं होती जितनी बेटी के लिए होती है। तो बेटी के लिए बेसिकली ये लफ्ज आता है, बेटी का निकाह करके देना। आता है ना कुरान में, कुरान में ये दोनों तरह से आता है। फिर ये नहीं बोलना कि अच्छा भाई, ये भी आता है और ये भी आता है। अपनी बच्चियों का निकाह करके दो, यानी वली का होना जरूरी है। और यहाँ पर अगर अपना निकाह करना है, मर्द ने करना है, नकाहा हुआ जमीर है, तो फिर वो उसमें कोई वली की जरूरत नहीं होती इतनी। ठीक है, अगर शामिल हो जाए माँ बाप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना हो तो भी लड़के की कोई उतनी नहीं होती, लड़की की ज्यादा है। लड़की घर से भाग नहीं सकती। अल एहसानु अन ताबुदुल्लाह, ये हो गया। अच्छा, अब ये कह रहे हैं हरफु अन और फेल का मजमुआ मस्दर मुअव्वल कहलाता है। ये बात किस किस को पता है पहले? जी नहीं, पता जैसे मुझे है। पता इंट्रोडक्शन है। था इस बात का, थोड़ी थोड़ी आपने हाँ, बताया है ना, आज आपको नूरुल अपने यकीन। इल्म और यकीन भी हासिल हो गया आपको, कि जब भी फेले मुजारे आएगा, मुजारे का कोई भी सीगा आएगा, पीछे अन आएगा तो वो मस्दर मुअव्वल कहलाएगा। आप उसका लफ्जी तर्जुमा भी कर सकते हैं और मस्दरी माने भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अभी आप देखना जरा। अन प्लस फेल, फेल भी कौन सा? मुजारे। ठीक है, नॉट फेल माजी अमर। अन प्लस फेल मुजारे इज इक्वल टू मस्दर मुअव्वल। मसलन अभी आप देखें, अन तसूमू, फेल मुजारे है, अन आ रहा है खैरुल लकुम, कि तुम रोजे रखने या तुम्हारा रोजा रखना। इसके दो मतलब हो सकते हैं ना, कि तुम रोजे रखो बेहतर है तुम्हारे लिए, या तुम्हारा रोजा रखना बेहतर है तुम्हारे लिए। दोनों मानी हो सकते हैं। ये जो आपका मस्तर मोवल बन गया है ना, इसमें मस्तरी मानी लाएंगे तो ये वाला होगा, रोजा रखना। मस्तर का तर्जुमा खाना पीना, हंसना रोना, रखना, उतरना। नून अलिफ जबर ना आता है ना उर्दू में, तर्जुमा आता है ना। तो जब ये वाला मानी आएगा ना, नून जी। अलिफ, तो वो आपका क्या होगा? वो मस्तरी मानी होगा। और ये वाला जब करेंगे तो ये लफ्जी तर्जुमा होगा, कि तुम रोजे रखो बेहतर है तुम्हारे लिए। अब वो कह रहे हैं मस्तर मुअव्वल की जगह मस्तर सरी लाना जायज है। इसकी जगह तुम क्या ला सकते हो? तसूमुकुम, बल्कि इसका क्या होगा? सियामुकुम। मस्तर क्या बनेगा ना, सामा यसूमु सियामुन बनेगा ना। तो सियामुकुम, यहाँ पे मैं सियामुन ले आई ना मस्तर, सियामुन, उसको मुजाफ बना लिया, और इस अंतम जमीर को, जो अंतम जमीर थी यहाँ पे, उसको मैंने गुम कर दिया, मुजाफिला बना दिया, तो सियामुकुम खैरुल लकुम। बहरहाल ये उसके बाद की बात है। पहली वाली बात आपने समझ ली कि हम दोनों तरह से मानी ला सकते हैं। ठीक है,
اور دوسری بات جو انہوں نے آج بتائی ہے نئی والی کہ مصدر معول کی جگہ مصدر سری لانا جی بھی جائز ہے. اب دو طرح کے مصدر ہو گئے، ایک معول ہو گیا جو یہ والا ہے، اور ایک مصدر سری ہے. سری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح، واضح دلیل، صاف 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 صاف، صاف واضح کلیئر ہے نا. تو کلیئر مصدر کیا ہے؟ وہ آپ کا سیامن ہے، ساما یا سومو، سیامن یا سیامن. ٹھیک ہے، اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو سکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ صبر کریں، پہلے اس چیز کو سمجھ لیں. یہ مصدر سری ہے، سیامن، سیامن، سیامن. یہ مضاف بن رہے یہاں پہ، اور یہ مضاف الیہ بن رہے. یا یہ بھی آپ لا سکتے ہیں اور آپ یہ بھی لا سکتے ہیں. اس کو مصدر موبل کہتے ہیں، اس کو مصدر سری کہتے ہیں. یہ بات سمجھ لی؟ ٹھیک ہے. جی اب آپ دیکھیں، سیامو کم خیر اللہ کم آ گیا نا. اب یہ سیامو کہاں سے آیا ہے اور کم کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو پوچھ، یہ سوم سوال. خیر اللہ سوم کا، ہاں. ساما، سواد و میم کیا ہوتا ہے؟ مادے کے حروف. مادہ ہے نا. روزہ رکھ اس سے بنے گا سوا ماں سے ساما بن جائے گا، اور یسو منہ سے یسومو بن جائے گا. یہ سب آپ کو پتہ ہے. جی یسومو بن جائے گا اور سیام من مصدر بن جائے گا. باب کون سا ہے؟ یہ مصدر سری ہے، جو ماضی اور باب مضارع کے بعد دور آتا ہے، یہ مصدر سری ہوتا ہے. باب دور نون با باب نون 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 باب سے ہے نا. ٹھیک ہے. سوری انو اب یہ والا مصدر جو ہے نا، ہم نے اس مصدر کی جگہ لانا ہے. مصدر معول جو ہے نا، مصدر معول کیا ہوتا ہے؟ ان پلس فعل مضارع. ان نے آ کے کیا کیا؟ تو سبونہ کا نون گرا دیا. ٹھیک ہے، اور یہ شکل رہ گئی. اب ہم نے اس کی جگہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مصدر سری بھی لا سکتے ہیں. تو مصدر سری یہ والا ہے نا، تو اس کو مضاف بنائیں گے. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو مضاف بناتے ہیں. اس کا پہلے ہم نے ساما یا سومو سیامن مصدر نکالا، باقی چھوڑ دیں، ساما یا سومو سب چھوڑ دیں. مصدر نکالا سیامن. سیامن جو مصدر نکالا ہے اس کو آپ نے مضاف بنانا ہے. تو مضاف کے اوپر تنوین تو آتی نہیں ہے، نہ زبر آتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیش لگانی ہے. سیامو. اب یہ کم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں پہ یہ وہ ضمیر انتم تھی نا، یہاں پہ انتم تھی کہ نہیں تھی؟ مجھے بتائیں. جی 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 اس میں انتم کا انتم ضمیر تھی نا، تم سب. تو وہ جی انتم تو یہاں پہ نہیں لا سکتے نا سیامو کے بعد مضاف الیہ بنا کے. کیا جی کیا آ سکتی ہے؟ نہیں نہیں آ سکتی. مضاف الیہ تو یہ بنتی ہی نہیں ہے، یہ تو مبتدا بنتی ہے، یا پھر یہ فائل بنتی ہے نا، جیسے یہاں پہ بن گئی. ابھی وہ تو ضمیر اب متصل لے کے آئیں گے. ہاں، ضمیر جو ہے منصوب متصل یعنی مجرور متصل لے کے آئیں گے نا. وہ ایک ہی ہوتی ہے، جی منصوب متصل ہی ہوتے ہیں وہ، جب مضاف الیہ بنتی ہے تو مجرور. تو جی اب یہ سیامو کو بن گیا. دونوں کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی مصدر معول ہے اور یہ مصدر سری ہے. اس کی جگہ یہ بھی لا سکتے ہیں، اس کی جگہ یہ بھی لا سکتے ہیں. عروبہ اچھا سمجھ آئی ہے؟ سدرا؟ جی مس ہاں، سب تھوڑا کچھ. سا جی ٹیچر. پہلے مجھے نہیں پتا تھا اس کا نا، یہ جو ابھی آپ نے بتایا نا سیامکم، یہ مجھے نہیں پتا تھا. الحمدللہ. اب چونکہ یہ مصدر بن گیا ہے نا انتسمو، تو اس کو جی آپ مبتدا بھی بنا سکتے ہیں. مصدر سب کچھ بن سکتا ہے، جو کوئی بھی نون بن سکتا ہے نا وہ یہ بن سکتا ہے. فاعل مفعول سب بن سکتا ہے. تو یہاں پہ اگر اس کو مبتدا خبر مبتدا بنا لیں، اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ یہ مبتدا بن گیا، اور یہ کیا بن گیا؟ خبر بن گئی، اسم تفضیل، اور یہ متعلق بن گیا، متعلق خبر. تو یہ ایک جملہ، خبر. یہ جملہ اس میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ مس مصدر پھر سری. انتسوم متعلق ہوگا. ہاں، یہ متعلق ہوگا. اب متعلق. یہ والا دیکھیں سیامہ کم، یہ تو آپ کو صاف سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ یہ مبتدا ہے، جار مرکب اضافی بن کے مبتدا بن رہا ہے، اور جی یہ خبر بن رہی ہے. اور یہ اس کو بھی جی آپ مبتدا بنا سکتے ہیں اگر جملے کے شروع میں آ جائے نا. تو یہ کیونکہ مصدر معول ہے، مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی مبتدا بنا سکتے اچھا. ہیں، اس کو خبر بنا سکتے ہیں. ویسے کیا ہے؟ ویسے دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو تسمو کے اندر کیا فائل ہے؟ انتم فائل ہے نا. تو خیرن کیا جی بنے گا پھر؟ خیرن کو کیا بنائیں گے؟ فائل تو اس کے اندر بنا لیا، خیرن ہونا چاہیے اگر مفعول لانا ہے تو اس کو کیا ہاں کریں گے جی. پھر آپ؟ تو یہ اس کا یہی ہے کہ اس کو مبتدا بنائیں، اس کو خبر بنائیں، اب یہ کریں کیونکہ یہ مصدر بن گیا ہے ابھی. انتسوم بہرحال یہ بات کی باتیں، لیکن جو جتنی میں نے بتائی ہے نا،
अभी अगर आपको नहीं भी बनाना आता ना, या अगर प्रैक्टिस करवाते भी हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह करवा दूँ। तो कुरान मजीद में ये वाला मस्तर भी यूज होता है, मस्तर मुअव्वल भी, और मस्तर सरी भी यूज होते हैं। सियामुकुम आते हैं ना, ये आता है ना जी कुरान में, सूरह उसमें ही आते तो आता है। या जहाँ पे रोजे की फर्जियत आती है वहां पे यही वाली आयत आ रही है ना, वहीं से आ रही है, और ये वाली भी आ रही है, दोनों आ रही है। अच्छा, उसके बाद अब देखो ये कह रहे हैं मस्तर मोवल जो होता है जुमले में मुब्तदा बन सकता है। मस्तर मोवल ये है ना, जी ये मस्तर मोवल है या नीचे वाला है? मिस ऊपर वाला। ऊपर वाला, ऊपर वाला। ये तो मस्तर सरी है ना, जैसे मस्तर सही जहाबा यजहबु जहाबन, क्या सामा मस्तर यसुमु सही सियामन। तो ये क्या है आपका, ये मस्तर मुअव्वल ये वाला है। इसकी मो- बात कर रहे हैं कि ये मुब्तदा भी बन सकता है, यहाँ मुब्तदा ही बनाए, क्योंकि ये खबर बनेगी और ये मुतल्लिक बनेगा, ये जुमला इस्मिया बनेगा, क्योंकि ये मुब्तदा बन सकता है ना। जी और जी। यहाँ पर तो वैसे ही मुब्तदा बन रहा है, क्योंकि इसम है ये, है ना, हम्म। इसम से मुरक्कब शुरू है तो ये हो रहा है। थोड़ा कभी साथी बन तो के। मुब्तदा भी बन सकता है, खबर भी बन सकता है। अगर पीछे मुब्तदा आ रहा है और आगे ये आ रहा है, अंतसमु आ रहा है, तो वो खबर बन जाएगा। इसी तरह फाइल भी बन सकता है, पीछे फेल आ रहा है तो फाइल मैम बन जाएगा। मफूल भी मफूल तो आप बनाते ही रहते हैं ना इसको, अंतसुमु को, ये जो अनमस्त्रिया के साथ जो भी फेल बस आता है। तेरी सही। ज्यादातर मफूल मैम बनता होता है। मैम आपसे एक सवाल पूछना था। अगर ये जुमला कहीं लिखा हो और हम्म, अन भी हो तो तुम ही तो, ये तो फेलिया जुमला कहेंगे ना हम इसे। क्या कह रहे हैं ना, मुब्तदा बन सकता है ना। नहीं, जब हम अन तस्सुमु लिखा हुआ है, अगर आपने पूछा कि ये कौन सा जुमला है। हाँ सही है ना। आप मुझे बताएं, मुझे बताएं कि ये क्या जुमला फेलिया बनेगा, मुझे बताएं जरा इसमें। नहीं एक तो इसमें इसके है शुरू में आन आ गया है, बनाए। चलो उसको भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। तस्सुमु को आप देखें, तस्सुमुन जो है तो फिर उसमें अगर आप फाइल इसको बनाएंगे तो खैरुन को क्या बनाएंगे? यही तो मैं अभी वजाहत कर रही थी ना, कि खैरुन को क्या बनाओगे फिर। तो वो भी तो देखना है ना, वो मैम जैसे जुमला ये फेलिया तो बन। इजी है ना, जो कुरान में मुश्किल अल्फाज होते हैं ना, उनकी मीनिंग हमें नहीं आती, फिर हम इसको हर बार जुमला फेलिया ही बनाते हैं। हालांकि अभी आप कह रही हैं इसको मुब्तदा बनाओ, इसको खबर बनाओ। अगर शुरू तो में आ ये मैं गया, पूछना। मेरी बात सुने, अगर शुरू में आ गया तो ही मुब्तदा बनेगा ना। अगर दरमियान में आया है तो वो फाइल भी बन सकता है, और फेल के बाद आ रहा है तो फाइल भी बन सकता है, और मफूल भी बन सकता है। मफूल तो आप रोज ही बनाते हैं ना, दरमियान में ही आता है ना ज्यादातर, देखेंगे यहाँ पर आया है ना। ये सब जो हमने पढ़ी है मिसालें, इनमें आपका क्या था, ये दरमियान में ही आ रहा था ना। यहाँ तो मुब्तदा नहीं बनेगा ना अभी, यहाँ तो जुमला फेलिया ही बनेगा, क्योंकि दरमियान में आ रहा है। यहाँ मफूल बन रहा है, ज्यादातर तो ये मफूल ही बनता है। देखिए फेल आ रहा है, उसका पहला ये मफूल है, दूसरा ये मफूल है। सही है, यहाँ पर भी देखें, अन अन कहाँ पे आ रहा है, ये तकरा हु आ रहा है, तो ये दरमियान में ही आ रहा है ना। तो हिब्बू आ रहा है अन के साथ, इस दरमियान में। अब तो इनको थोड़ी मुब्तदा बनाएंगी, जो जैसी सिचुएशन होगी वैसे। अब ये शुरू में आया है तो इसलिए बनाया, शुरू में आ गया तो इसलिए। अब इसको हम मुब्तदा, खबर तो बना, ये चार चीजें कह रहे हैं कि बना सकते हैं, तो खबर बना सकते हैं इसको, तो इसकी इसका मुब्तदा किधर है फिर? है, फाइल बना सकते हैं तो फेल किधर है इसका? मफूल बना सकते हैं तो फेल किधर है इसका? बना, ये कह रहे हैं ना कि मस्तर हो गया ये। अब मस्तर क्या चीज, चार चीजें बन सकता है। अब इस चार चीजों में से हम सिर्फ इसको मुब्तदा ही बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? फेल होता पीछे तो इसको मफूल बना देते या फाइल बना देते, पीछे मुब्तदा होता तो इसको खबर बना देते। तो ये शुरू में आ गया तो शुरू में ये फिर, अब ये इसम के मानी में हो गया ना, ये मस्दर सरी में चेंज हो गया, तो इसलिए अभी ये मुब्तदा बन सकता है। अच्छा, बहरहाल ये चीजें वक्त के साथ समझ आती हैं। जैसे जैसे मिसालें करते हैं ना, तो ये उन्होंने बता दिया। बहरहाल ये बात समझ आ गई ना, कि ये बन सकता है मस्दर मुअव्वल, अन प्लस मुजारे, चार चीजें बन सकता है। मुब्तदा यहाँ पे आई मिसाल, ये मस्दर सरी है, इसकी बात नहीं हो रही, ये तो मुब्तदा ही बनेगा। ये तो आपको पता ही है कि इसको मुब्तदा बनाना है, इसको खबर बनाना है ना। जी क्या नाम है, अफशीन? जी यहाँ तो मैम। फेल का कोई सवाल ही नहीं है ना, जुमला फेलिया जी बनाने का। मैम। तो मस्दर मुअव्वल की बात हो रही है। अगर जुमले के शुरू में आ जाएगा, पीछे कुछ भी नहीं है, तो मुब्तदा बनेगा। अगर पीछे मुब्तदा आएगा तो खबर बनेगी, पीछे फेल आएगा तो फाइल या उसका मफूल फेल का बनेगा। चार चीजें बता रहे हैं, सीधी सीधी बात है। कई के बारे में पढ़ना है या बस करना है? नहीं, कई क्या, पढ़ना है मैम। हाँ कई क्या है, ताके का मानी देता है, ये पढ़ा हुआ है आपने ये सब।
ये चारों हरफ आप बखूबी वाकिफ हैं जी इनसे। जी मैम, पढ़ा है हमने। तो कई जो होता है ये कई जो है इसका इस्तेमाल कम होता है, लिकई का ज्यादा होता है कुरान में। लिकई भी आता है ना, लिकई ला भी आता है, आगे ला भी आता है। माइक म्यूट रखें। लिकई ला भी आता है, नफी में लाना ना, ताकि ना वो करें कुछ, तो लिकई ला भी आता है। और लामू कई भी आता है, जिसको लामू तालील भी कहते हैं आप। अब ये जब आता है ना, इसको लामू का लामू कई तो कह देते हैं, लेकिन ये खुद नहीं करता। इसके और मुजारे के बीच में अन छुपा होता है। ये खुद तो हरफ जर है ना, लेकिन जब उसके बाद इसम आए तभी हरफ जर है। अगर फेल आ जाए तो फेल और उसके बीच में अन छुपा होता है, फिर वो मंसूब कर रहा होता है। तो ये मिसालें आप करेंगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे इसको। तो कई के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि का मतलब है ताकि यानी सो दैट, ठीक है ना। ये फेल के बाद आकर फेल का मकसद बयान करता है। ताकि मैं पानी पीऊं, मैं कमरे से निकला ताकि मैं पानी पीऊं, मैं कमरे से निकला ताकि शोर गुल की वजह बयान करूं, मैं कमरे से निकला क्लासरूम से निकला ताकि मैं नोटिस बोर्ड पढूं। ताकि अब यहां पर क्या मिसाल आ रही है मकसद के लिए, पढ़े जुबैदा। जी, ये फेल के बाद आकर फेल का मकसद बयान करता है। हम्म, अ, कई के साथ अक्सर लाम जारा होता है, मसलन कदिम तू लकई अफहमल कुरान, मैं आया ताकि कुरान समझूं। आपने ये वाली मिसाल तो पढ़ी नहीं, यहां से अच्छा, जंप लगाया यहाँ। अ, इकरा इकराऊ इकराउल कुरान कई अफहमा अफहमाहू। हम्म। अकराऊ, अकराऊ का अकरा, मतलब क्या होता है? पढ़ो। अना जमीर है ना। जी, मैं पढ़ूं कुरान हम्म, को हम्म। ताकि देखिए, इकरा ताकि इकरा होगा ना तो पढ़ो होगा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, सोचा करे ना कुछ। इकरा होगा ना, जी ये है फिले अमर, पढ़ो। ठीक है ना, इकरा नाम भी रखते हैं ना लड़कियों का, बेसोचे समझे रख देते हैं इकरा, पढ़ो। ठीक है ना। अब जी एक कुरा अकरा है ये, आकुर्रा, हु भी आ अकराऊ। रहा है, ठीक है। तो ये मुजारे है, शुरू में हमजा है और ये आखिर में पेश है। तो अकरा अन्ना जमीर फाइल है, अकरा उल कुराना, मैंने पढ़ा कुरान को ताकि मैं क्या करूं, इसे अफहमा हूँ। समझ उसको समझ। उसको समझ। हाँ, तो कुरान पढ़ने की वजह क्या है, वो कई बता रहे हैं, ताकि मैं उसको पढ़ूं समझूं। चले आगे आप पढ़ें, थोड़ा अफशीन आप पढ़ें, सही से पढ़ना, गलत नहीं पढ़ना। इसका मतलब समझ में आ गया, ये है आपका फेल, इसके अंदर अन्ना जमीर फाइल है, अल कुराना मफूल है, और ये कई क्यों आ रहा है, मकसद बयान करने के लिए। और ये क्या करना है, हरूफ नासबा में से है, तो इसने अफामू को अफामा कर दिया है, अफामा हु। ये सारी बातें सोचनी है। इसका माजी क्या होगा, फहीमा, और यफहमू तफहमू तफहमू अफहमू, कई लगा तो अफहमा हो गया। अच्छा, कई के साथ अक्सर क्या होता है, लाम जारा होता है, आपने देखा है, मैंने बताया लीकई के बारे में बताया ना, यहाँ लिखा था, मिटा दिया। लीकई भी होता है, कई के साथ क्या होता है, लीकई भी आता है। तो यही बता रहे हैं कि कई के साथ अक्सर लामू जारा हरफ जर भी आता है। अब उसका हरफ जर वाला मानी नहीं होगा, उसका मानी भी ताके ही होगा, इस, है ना। अच्छा, आगे पढ़े। इस्लाम इस्लाम को में जारा कब अक्सर होता है, मतलब किस चीज के लिए, मतलब मकसद क्या यानी ये होता है लामी कई, जारा को कई के ऊपर दाखिल करने का? कोई मकसद नहीं है। लिकई कुरान में आता है, कई भी कुरान में आता है, लिकई ला भी आता है, इस तरह भी लिखा हुआ आपको मिलता है अगर आप कुरान गौर से पढ़ते हैं तो। लिकई ला, ताकि ना वो, है ना। इसका मतलब लिकई का मतलब ताकि ही है, सिर्फ ली आएगा तब भी ताके का मतलब, ताके का मानी देगा। मुजारे से पहले ली आ जाए ना, ली या बुदू, है ना, ली या बुदू, ताकि वो इबादत करें। लेकिन ली खुद कुछ नहीं करता, ली और याबुदू के बीच में अन छुपा होता है, जो सबसे पहले हमने पढ़ा है।
लन अन पढ़ा है ना, वो वाला छुपा होता है वो करते हैं, क्योंकि ये रूफे जा रहे हैं, इसका कोई मकसद नहीं है, ये मजरूर नहीं करेगा, हरफ जर तो है लेकिन मजरूर नहीं करेगा। सही है, ये इसी तरह लिखा होता है लिकई। तो इसकी शक्लें है ना, कुरान मजीद में कई भी आता है, लिकई भी आता है, लिकई ला भी आता है, ली भी आता है, ये चार शक्लें, मानी एक ही है। अच्छा, कदिम तू, मैं आया, लिकई लकई अफहमल कुरान, ताकि, मैं आया ताकि कुरान समझूं। अब अफहमू होता है ना, अना जमीर अफहमू होता है, तो कई की वजह से, लिकई की वजह से क्या हो गया, मंसूब हो गया। ठीक है, जी। बेसिक हरफ तो चार ही पढ़े हैं ना हमने, जिनमें से एक कुरान में यूज ही नहीं होता, लन अन, कई इज़न, लन अन कई, इजन, इजन आता ही नहीं है। ठीक है, ये वाला इजन कुरान में नहीं आता कभी भी, ये वाला बहुत ज्यादा यूज होता है, मीनिंग एक ही होते हैं तब तो, लेकिन ये वाली शक्ल में आता है, ये वाला इस शक्ल में आता है, बस ये है। तो बाकी ये तीन ही है ना। अब ये तीन जो है, ये तीसरा वाला जो है ये डिफरेंट अशकाल में आता है, कई भी आता है, लिकई भी आता है, फिर उसके बाद ये सिर्फ ली भी आता है, लिकई ला भी आता है, चार शक्लें बता दी हैं इसकी मैंने। तो यहाँ पे लिकई की शक्ल में आ रहा है और मनसूब कर रहा है, काम एक ही करते हैं सारे। ताकि मैं कुरान वजह बताई जा रही ना, मैं क्यों आया हूँ, मैं आई क्योंकि ताकि मैं कुरान को समझूं। लड़की भी यही जुमला बोलेगी और लड़का भी यही जुमला बोलेगा, आया या मैं आई। आगे क्या, इस्लाम को अक्सर हदफ कर दिया जाता है, जैसे ऊपर की मिसालों में है। लिकई को ला नाफिया के साथ मिलाकर लिखा जाता है, हम्म, लिकई प्लस ला, लिकई ला। इस ली को, इस्लाम को हज़फ करके कई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जी। और उसके बाद लिकई ला इस शक्ल में भी आता है, मैंने सारी शक्लें आपको बता दी। तो लिकई ला कब आता है, इसका मीनिंग इन्होंने नहीं बताया, लेकिन कुरान मजीद में ताकि ना, ताकि ना क्या है, इसके आगे फिर जुमला होगा ना, कुरान में आएगा, इजन है। अब ये वाली तब तो या फिर तो इसका मीनिंग होता है। सही है, अब जी। पढ़े यहां से। इस हरफ से पहले एक जुमला आता है जिसका नतीजा या रद्द अमल इज़न से जाहिर किया जाता है। मसलन कुल्तु लिज़ैदिन हाज़िल किताबु मुफीदुन फ़क़ाल इज़्न सअक़रअहु। अकराहु। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि इसका पहले तो सबसे पहले मीनिंग बताया, दूसरी बात क्या बताई है कि जब भी इज़ान आएगा उससे पहले भी एक जुमला होगा, शुरू में ही जी। तब तो का मानी नहीं लगा देंगे। ठीक है, पहले एक जुमला होगा, फिर इज़ान आएगा, तब तो का मानी देगा, उसके बाद फिर एक जुमला होगा रद्द अमल के तौर पे। जी। इस हर्फ से पहले यानी इज़न से पहले एक जुमला आता है जिसका नतीजा या रद्द अमल इज़न से जाहिर किया जाता है, उस जुमले के बाद इज़न आता है, फिर एक जुमला आता है। अब देखिए मिसाल देखें, कुल्तु लिज़ैदिन, मैंने कहा जैद से, हाजल किताब मुफीदुन, ये एक जुमला पहले आ गया, फिर उसने क्या कहा, फकाला, उसने कहा यानी जैद ने क्या कहा, इज़न साकरा सा अकरा आहू, फ़क़रअहु। तब तो मैं जरूर उसको पढ़ूंगा, जरूर का मानी ना भी लाए, तब तो मैं उसको पढ़ूंगा, आई विल रीड इट। सीन क्या कहता है, विल का मानी देता है, फ्यूचर में कर देता है। तो इज़ान से पहले एक जुमला आया और इज़ान के बाद एक जुमला आया, तो ये इसी तरह यूज होता है, जब भी कुरान में आएगा उसी तरह होगा, शक्ल इसकी चेंज होगी, अलिफ के साथ आएगा। इज़ान को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दो ज़बर के साथ। दो जबर डालेंगे तो अलिफ भी डालना पड़ेगा, तो इस शक्ल में भी जी। ये और ये इक्वल है, दोनों इक्वल है, लेकिन इस शक्ल में आता है ये तब तो का मानी देता है, और इस शक्ल में नहीं आता, बस ये बात है। तो वो बोला तब तो मैं उसे पढ़ूंगा, तब तो का मीनिंग इज़न से आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, मुजारे को अकराऊ था अकरा कर दिया इसने। मनसूब कर दिया। ठीक है, अब ये इन्होंने कुरान से मिसाल नहीं दी क्योंकि कुरान में मिसाल आती ही नहीं। अच्छा, हत्ता, हत्ता क्या है, नंबर 6 है, नंबर 5 है, हत्ता के बाद ली भी आएगा, तो हत्ता जी। और ली के बीच में क्या छुपा होता है, अन छुपा होता है। अन। ये असल में तो ये इसम के इसम से पहले आते हैं, हत्ता और ली, ये रूफे जारा में से दोनों।
لیکن اگر ان کے بعد آپ کو فعل مضارع نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں ان ہے، جو کہ مضارع کا مضارع کو زبر دے رہا ہے یا مضارع کا نون گرا رہا ہے، ٹھیک ہے، منصوب کر. منصوب کر. تو یہ عامل ہے نا حروف دونوں. تو اسم پر آئیں گے تو پھر یہ مجرور کریں گے، فعل پر آئیں گے تو بیچ میں ان چھپا ہوگا، منصوب. منصوب کریں گے. یہ خود نہیں کر سکتے، ان کی جرت نہیں ہے. جی یہاں تک کہ کا معنی دے گا، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ معلم اجازت دے دے، سکتے. یہاں تک کہ آپ بیٹھ جائیں. تو میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا. اب یہاں تک یہ آ رہا ہے اس کا ترجمہ. تو ہرگز نہیں بیٹھوں گا، لن اجلسا، میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا، یہ مستقبل میں کر دیتا ہے معنی. جی ہرگز نہیں کا معنی کرتا ہے اور زبر دیتا ہے. حتی یأذنا، یأذنا کیا ہے؟ مضارع ہے. حتی نے منصوب نہیں کیا، بیچ میں ان چھپا ہوا ہے. حتی ان یأذنا، منصوب کرنے والے تو وہ تین ہی ہے نا، چار ہی ہے نا، وہی کریں گے. این یأذن المعلم، معلم فاعل بن جائے گا، یہ فعل بن جائے گا. اور فاعل یہ ہے تو یہ صرف فعل کے طور پہ. پہلا اور چوتھا صیغہ مضارع کا یا ماضی کا، فاعل اسم ظاہر بھی آ سکتا. تو یہ آ گیا. لی آ گیا، لی کا مطلب بھی تاکہ ہے. اور کس کا مطلب تاکہ تھا؟ کئی کا مطلب ہے نا. جی میم. ہاں، کئی کا مطلب بھی تاکہ تھا، لی کئی کا مطلب بھی تاکہ تھا. لی کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ لی آ گیا خالی، اس کا مطلب بھی تاکہ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ والا، اب یہاں پر یہ یا بدونا تھا نا، اس لی نے کیا کیا؟ لی نے کچھ نہیں کیا، اس کے بیچ میں ان تھا. لی حرف جر ہے، وہ تم اسم پہ آتا ہے، مجرور کرتا ہے. جب فعل مضارع بعد میں آ جائے تو ان ہوتا ہے. ان نے اس کو کیا کر دیا؟ مجزوم یا منصوب؟ نون گرا کے ان کیا کو کہ منصوب کرتا منسوب ہے. منسوب کر دیا. منصوب کر دیا ہے. تاکہ کا معنی دے رہا ہے لی، جی تاکہ وہ عبادت کریں، وہ سب عبادت کریں اس کی. اس کی تو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہم الناس کی طرف جا رہی ہے، ہاں، اللہ کی طرف نہیں جا رہی. ہو جا رہی ہے اللہ کی طرف. اللہ کی طرف نہیں جا رہی، ہو جا رہی. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. میں پانی پینے کے لیے کلاس سے باہر نکلا. کے باہر نکلا. خرجت من الفصل لأشرب الماء. ہاں، ماء. یہاں بھی وجہ مقصد بتایا جا رہا ہے نا کلاس سے نکلنے کا. تو یہ تاکہ لی جو ہے نا، یہ بھی مقصد ہی بیان کرتا ہے. انسانوں کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ عبادت کریں، مقصد ہے نا. جی جی یہاں پر بھی مقصد بیان کیا جا رہا ہے. خرجت من الفصل لی اشرب الماء، تاکہ میں پانی پیوں. اشربا میں انا ضمیر فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. تاکہ میں پانی پیوں. اسے لامو کئی بھی کہتے ہیں اور لامو تعلیل بھی کہتے ہیں. یہ سب میں نے پہلے ریپیٹ کیا ہوا بہت بار. لامو کئی کو لی ہے اصل میں، لی کو لامو کئی بھی کہتے ہیں، یہ بھی کئی بار ریپیٹ ہوا ہے. اور لامو تعلیل کہتے ہیں، یعنی وجہ بتا رہا ہے نا، سبب بتا رہا ہے. جی دو معنی ہے، لامو کئی بھی کہتے ہیں، کیونکہ کئی بھی وہی معنی دیتا ہے جو لام دے رہا ہے یہاں پہ. اچھا، یہ تین شکلوں میں لکھا جاتا ہے. لی بھی لکھا جاتا ہے، کئی بھی لکھا جاتا ہے، اور لی کئی بھی لکھا جاتا ہے. اور اوپر انہوں نے لی کئی لا بھی بتایا تھا، جب نفی میں جب لانا ہو تو. یہ سارے مضارع پہ ہی آئیں گے. اس کے اور مضارع کے بیچ میں ان چھپا ہوگا، لیکن یہ والے ڈائریکٹ آئیں گے، ان کے بیچ میں ان نہیں چھپا ہوگا. جب یہ آئیں گے نا تو پھر ان نہیں چھپا ہوگا. صرف جب لی آئے گا نا ان میں سے تو ان چھپا ہوگا، کیونکہ لی حرف جر ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، تاکہ وہ سب کیا کرے؟ میری عبادت کر. عبادت کرے. میری کا کہاں سے میری ترجمہ آیا؟ میری. میری کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ یس اس کی یا گری ہوئی ہے نا. ہاں، یہاں جو فعل کے نیچے کبھی نون کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی ہے، سوائے مثنیٰ کے جی صیغے کے. اور وہ بھی اسم میں آتی ہے، فعل میں بھی آتی ہے. یا اگر آپ کا ہے نا، جیسے یدربو یدربانی آتا ہے نا،
تو سوائے مونس کے سیغے کے مثنیٰ کے، لیکن یہاں پہ تو مثنیٰ کا سیغہ نہیں ہے، یہاں تو جمع کا سیغہ ہے، وہ آ رہی ہے. تو یہاں پہ یہ نون کس وجہ سے آ رہی ہے کہ یا گرا ہوا ہے، اور اس میں ترجمہ میری کا آپ کو لازم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں زیر بتا رہی ہے کہ یا گری ہوئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں، یا تو گری ہوئی ہے، تو پھر لی نے جو نون گرایا وہ کدھر ہے؟ اور یہ نون کا، اس لی نے نون کیوں نہیں گرایا؟ یہاں ان ہے بیچ میں. اس یہ ان، نون وقایا آ گیا. یہ نون ہاں یہ نون وکایا ہے، اصل نون گرا ہوا ہے، جی یا بدونا کا نون گرا ہوا ہے، یہ اس یا کے ساتھ کا نون ہے، اور اس کی یہ ہوتی مفعول زے. قانون ہے. سمجھ آ گئی سب کو یہ بات؟ کسی کا کوشچن ہے اس کے بارے میں؟ یا بدونا تھا، لی نے نون گرا دیا، اب ہم نے آگے مفعول لگانا ہے. مفعول ہے ہمارا ضمیر، اور وہ بھی یا، اور یا کو چاہیے ہوتی ہے زیر اپنے سے پہلے، تو نون وکایا ضرور لاتی ہے وہ اپنے پاس، نی. ٹھیک ہے نا، یا بدون نی تھا اصل میں یہ. پھر ہمیں آیت کو ختم کرنا تھا، تو آیت اس طرح سے ختم نہیں ہوتی، بڑے لفظ پہ ختم ہوتی ہے، نون والے پہ. اس کو گرا دیا اور یہ رہ گیا، نی رہ گیا. چلیں آ جائے گی سمجھ، ہم قرآن پہ مثالیں کریں گے اور بار بار میں سمجھاتی ہوں، ابھی میرے میں اتنی ہمت ہے. اب اس کو آگے کر لیتے ہیں، تھوڑا سا یہ ختم ہونے والا ہے. جا لکم اللیل والنہار لتسکنوا، اب بتائیں یہاں پہ کیا تھا، کیا گرا ہوا ہے؟ لتسکونون. اس نون گرا ہے. ہاں، نون اور کی اس کو کون گرا رہا ہے؟ نون کو لی گرا رہا ہے. نہیں، ان ان مصدر. ان ان مصدر. مصدریہ، ان مصدریہ گرا رہا ہے. تو ان پھر اس کے ساتھ مل کے مصدر کے معنی میں ہو جائے گا نا. اچھا، اس ان، آگے والی تب تک میں بھی نون گرا ہے، ہاں ہاں جی. اور اس میں بھی اس میں نون بھی گرا، ان ہے. اس میں بھی ان ہی گرا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم، اگر صرف پیش ہوتی نا تب تک وہ ہوتا، یہ اتنا ہی ہوتا سیگا، تو پھر پیش گرتی. ٹھیک ہے، اب یہاں جی چونکہ وہ نون تھا، جمع کا سیگا تھا، تو نون گرا. اگر پیش گرتی تو کیا آتا؟ زبر. پھر زبر زبر. آتا. زبر آ جاتا. اللہ زی، وہ ذات، خلق الموتا، اس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، تاکہ وہ کیا کرے؟ لیبلوکم، آزمائش کرے. تاکہ دیکھے. آزمائے آزمائے تم کو. تم کو. آزمائے. اب یہاں بھی وہ آ رہی ہے، یہاں کیا گرا ہے مجھے بتائیں؟ ایوکم احسن عملا. لونا تھا، پیش. نون تھا. یہاں مار نون. کھا گئے نون نا گرا آپ. ہوا. یہاں پہ آپ کیا، نون. یہ روٹ ورڈ ہے، اس کو اچھا نہیں گرا. اچھا. یہ جمع کا سیگا نہیں ہے. تاکہ وہ آزمائے تم کو، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. ہوں اللہ سبحانہ. تو یہ خیال رکھنا ہے آپ نے، بعض سیغے ایسے ہوتے ہیں ان میں وہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور وہ واحد کا سیغہ آپ سمجھتے ہیں نون گر گیا یہاں سے. اچھا. ہاں، یہ یبلو تھا، اور اصل میں یبلوو ہوتا ہے نا. تو پھر جب آپ لیل ان لگاتے ہیں، ان چھپا ہوا جب اس کو ہوتا ہے، یبلوا ہو جاتا ہے. یہ پہلا سیغہ ہے، یہ اچھا. مضارع کا پہلا سیغہ ہے، جمع کا سیغہ نہیں ہے. یہ وہ اس کا روٹ ورڈ ہے. بلا وا، بلا ہو جاتا ہے نا. جی جی جی. اور بلا. یبلو وو، وہ. اچھا. دیکھیں ناقص ہے نا، ہاں جی. یبلو وو. وہ. ٹھیک ہے، جس کو ہم یبلو پڑھتے ہیں. یبلو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ باس پہ پیش آئے، پیچھے پیش آئے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، ہے نا. تو یبلو پڑھتے ہیں، یبلو وہ نہیں پڑھتے. لیکن فرض کریں کہ یبلو وہ ہی ہے اور آپ کا پیچھے لی آ گیا ہے، تو اب کیا تو ہوگا؟ یہ پیش زبر میں چینج لیبلوا. ہوگا نا. اچھا اچھا اچھا. مجھے نہیں پتا تھا. ایسے ہی پتہ چلتا ہے نا. ہم، تو یہ تو واحد کا سیغہ ہے، واحد مذکر کا سیغہ ہے، ہوا ضمیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ یہ جمع کا سیغہ نہیں تھا. اگر جمع کا سیغہ ہوتا تو ہم ضمیر ہوتی نا. تو ہم ضمیر کدھر لوٹاتے؟ موت کی طرف، حیات کی طرف. کس کی طرف لوٹاتے؟ ہم. اللہ زی کی طرف لوٹانی نا، اسم موصول کی طرف. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی ہوا ضمیر ہے، لوٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات ہو رہی. تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایوکم، تم دونوں میں. ایو ہمیشہ مضاف بنتا ہے، مضاف مضاف الیہ. وچ آف یو، ٹھیک ہے، تم میں سے کون، احسنو، زیادہ اچھا، افعلو کے وزن پہ ہے، سپرلیٹو ڈگری.
عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے؟ عملاً تمجیز بن رہی ہے عمل کے اعتبار سے. اگر یہ نہ لگاتے تمجیز تو پھر احسن تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھا ہے؟ کس چیز کے اعتبار سے؟ ایمان عمل اخ- کے کہتے عمل اخلاق. کے ہاں، تو عمل کے اعتبار سے تو وہ جو چیز ہم جو ابہام کو دور کرتی ہے نا وہ تمجیز کہلاتی ہے. یہ تمجیز ہے. ایکم احسن عملا، کون جو ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اب یہ ختم ہو گیا آپ کا، کافی پڑھ لیا. مضارع کو اخف کرنا، اس کے روپ پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم، اور نیکسٹ سیٹرڈے کو استاذہ پڑھیں ہم گے. نے لاسٹ ویک کیا تھا نون سکیلا، وہ کدھر، وہ ہم نے نہیں کرنا تھا؟ نون ثقیلہ میں نے کروایا تھا، آپ آئی تھی کلاس میں. دیکھیں نون ثقیلہ میں یہ ہوتا ہے، اب مکس اپ ہو جائے گا لیکن اچھا میں موٹا موٹا بتا دیتی ہوں. اگر انا کی ساؤنڈ آتی ہے نا تو وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیگا جو ہے پیش والا ہے. اور انا کی ساؤنڈ آتی ہے، بس اتنی سی باتیں آپ نے یاد رکھیں. انا کی ساؤنڈ آتی ہے، نون ثقیلہ ہے نا ہاں جی یہ بھی ہاں نون جی ثقیلہ ہے. تو انا کی ساؤنڈ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیش والے سیگے کی پیش گرا کے زبر لگا کے آگے نون ثقیلہ لگائی گئی ہے. اور پیش کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ نون گرا کے وہاں پر پیش پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے تو آگے نون ثقیلہ لگائی ہے. وہ نون سے پہلے پیش تو لگی ہوتی ہے نا آلریڈی، جی ہے جی نا. تو آپ نے جی آگے کیا کرنا ہے وہ لگا دیا. یہ جمع کے سیگوں کے لیے اور یہ واحد کے سیگوں کے لیے. یہ لام لام پر پیش آنے والے سیگوں کے لیے انا ساؤنڈ، اور یہ وہ نون والے سیگوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور باقی جو جی سیگے رہ گئے ہیں مثنیٰ میں تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، اور وہ نون نسوہ والے سیگوں میں بھی قرآن میں کوئی مثالیں نہیں آتی. ہم نے صرف کیا کرنا ہے، انا، انا اور انا، یہ جی تین ساؤنڈ آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا اگر آپ نون مشدد سے پہلے زیر دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ آپ کا واحد واحد مونس کا سیگا ہوگا. مؤنث کا صیغہ ہوگا. گردان میں آپ نے جا کے یہ نشانیاں دیکھنی ہے. انا آ اچھا رہا ہے، زیر آ رہی ہے، نون ثقیلہ سے پہلے اگر زیر آ رہی ہے تو وہ آپ کا کیا ہوگا، جیسے تف علینا ہوتا ہے نا، تف علینا. انتی کا ہوگا نا، انتی. ہاں انتی کا تف علینا. اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، نون مشدد لگانا ہے. تو ہم کیا کریں گے، یا بھی گرا دیں گے اور یہ نون بھی گرا دیں گے، جیسے ہم نے جمع کی صیغے میں وہ نون گرا دیا ہے نا. جی جی اسی طرح یہاں بھی یا نون گرا دیں گے. تو پھر یہ آپ کا آگے اس کے بعد یہ آپ کا تف علی رہ گیا. تو تف علی کے بعد آپ نون مشدد ڈال دیں گے، تف علینا بن جائے گا. ہم، ٹھیک ہے. اگر یہ جی ساؤنڈ آ رہی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ والی آ رہی ہے، لنا کی ساؤنڈ آ رہی ہے، یا اس کو آپ لنا کی ساؤنڈ آ رہی ہے یا لنا کی ساؤنڈ، یہ تین ساؤنڈ ہے. آپ کیسے پہچانیں گے، یہ والی تو واحد مونس کے سیغے کی ساؤنڈ ہے. انا کر لیں، انا کر لیں، انا کر لیں، زیادہ آسان ہے. یہ والی اچھا جو ہے یہ پیش والے سیگوں کا ساؤنڈ ہے، اور یہ والی جو ہے یہ جمع والوں کی. جمع مذکر کے سیغے دو ہی ہوتے ہیں، ایک مخاطب کا ہوتا ہے، غائب کا ہوتا ہے، ان کی ساؤنڈ ہے. اس میں جی واو نون گرا ہوا ہے، اس میں آپ کا پیش گرا ہوا ہے، اور اس میں آپ کا یا نون گرا ہوا ہے. یہ میں نے ابھی آپ کو بنایا. اب دیکھیں جی نہیں، آپ نون مشدد لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، تف علینا بنے گا نا. جی نہیں بنے گا، بتائیں. جی جی تفعیلنا جی بنے گا. میم ہاں تو یہ انا ساؤنڈ لگوائیے، اور یہ آپ کا یف الو ہے فرض کریں. ٹھیک ہے. اب یہ جی کیا بن جائے گا، جب آپ اس کو پیش کو گرا کے زبر دیں گے اور نون مشدد لگائیں گے تو یف النا بنے گا جی نا. جی جی اسی جی طرح تفلو، تفلو، افلو، نفلو، سب میں کیا ہوگا، پیش گرا کے نون مشدد ہی لگائیں گے. باقی رہ گئے یہ والے سیگے، تو یہ یفلونا تھا نا. جی تو آپ واو آپ مجھے جانے واو نہیں دیتے. ہاں جی یفعلونا. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ واو دونوں گرا دینے ہیں. ہاں ان جی کا کوئی واو کام نہیں ہے، اور نون مشدد لگائیں گے تو یہ آپ کی یہاں پہ انا ساؤنڈ آ جائے گی. اب یہ والی تو یہ تو گر گیا نا، سب یہ سب گر گیا. جی یہ پیش رہ گئی اور یہ رہ گئی. نون مشدد پہ ہمیشہ زبر آتی ہے. یفعلنا ہو گیا، یہ بھی کروا دیا. یفعلنا پیش والے سیگوں پہ زبر آئے گی، لام کے بعد پیش گرا کے. ان میں آپ نے وہ نون دونے گرانا ہے، پیش پیچھے سے لگی ہوئی ہے، اس کے آگے یہ لگا دینا ہے. اس جی میں آپ نے یا نون گرائی تھی اور پیچھے زیر لگی ہوئی تھی، اس کے آگے نون مشدد.
یہ اتنی سی بات میں پورا قصہ بیان ہو گیا کہ اس کا نون ثقیلہ ثقیلہ وکیل نون ثقیلہ کا. اور یہی رول وہاں پہ بھی ہے. کس میں؟ نون خفیفہ میں بھی یہی رول ہے. نون خفیفہ کس سے ہوتی ہے؟ وہاں پہ نون پہ سکون ہوتا ہے نا، جی جی دو اس میں ہے بھی نا. یہی، اس میں بھی یہی رول ہے. رول یہی ہے دونوں میں. اچھا وہ نون گرائیں گے پیچھے پیش ہوگی، ٹھیک ہے، اور سکون آ جائے گا، نون ساکن آ جائے گا، اور اسی طرح یہاں پہ بھی نون ساکن آئے گا اور یہاں پہ بھی پیش. تو گردان کو ایک دفعہ پھر دیکھ لینا نا دونوں کی، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں نے کیا بتایا. اچھا بعد میں آپ کا ٹیسٹ آئے گا، پھر آپ لیکچر سنیں گے، پھر اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے وہ ساری چیزیں ریوائز کریں گے، تو پھر ٹیسٹ دیں گے تو پکی ہو جائیں گی نا. جی جی مثالیں کریں گے، پیپر کوئی انشاءاللہ آسان نہیں. اگر کہتے ہو تو پیپر میں ابھی سے بھیج دیتی ہوں. جس کی استاد تیاری ہے کر. جو آپ نے پیپر بھیجا ہوا ہے پہلا، ہوں، تو وہ تو میں لیٹ ہو گئی، میں نے کل ہی دیکھا اس کو، تو ابھی میں کر سکتی؟ کریں کوئی اچھا بات کریں، صحیح، ٹھیک ہے نا. جی آپ نے لکھ کے تو کر لیا تھا نا. ایک تو کر لیا تھا میں نے، وہ پتہ نہیں مہمانوں کی وجہ سے نا میں بھول ہی گئی. اس کو دیکھا میں نے مگر میں بھول گئی اس کو اپنی کرنا. ذمہ داری پہ کریں، اپنے اون پہ کریں کہ ہمیں کرنا ہے، ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہمیں ٹیسٹ بھی کرنے ہیں. جی سرٹیفکیٹ کے لیے نہ کریں. کس کے لیے کریں؟ نہیں سرٹیفکیٹ تو آپ کو مل جائے گا، وہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. سیکھنے کے صحابہ لیے. کے پاس کون سے سرٹیفکیٹ تھے، ڈگریاں تھیں؟ مجھے یہ بتائیں. اصل بات ہے سیکھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا. یہ دو ہمارے ہیں ٹارگٹ. ٹیسٹ کرنا سیکھنے کے حصے میں آتا ہے، سیکھنے کے اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عمل پھر ہوتا ہے. قرآن کی آیات جو پڑھتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے نا، جی ہے نا. جی اور آج ہم نے یہ پڑھا، روح ناصبہ پڑھے، جیسے ابھی میں نے یہ والا سیکھا نا، یہ پہلا سیکھا تھا جی. یہ والا سیکھا، یہ والا سیکھا، باقی تو سب کیونکہ آسان ہے. جب یہاں پہ جب آتے ہیں نا تو پھر آپ مار کھاتے ہیں. تو اگر روٹ ورڈ میں وہ آ رہا ہے تو پھر آپ کا وہ جمع کا صیغہ نہیں ہوگا، اور نون کے نیچے زیر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آگے سے میری کا ترجمہ بھی کرنا ہے یا گری ہوئی. جی پھر یہ نون جو ہے نا یہ اصلی وہ والا نون نہیں ہے، وہ تو گر چکا ہے، یا بدونا جی کا نون. وہ تو لی نے آ کے گرا دیا نا، لی کے بعد ان چھپا ہوا تو اس نے گرا دیا. جی یہ نون اس یا کے ساتھ نون ہے، نون وکایا. اس کو نون وکایا چاہیے ہوتا ہے زیر لگا. یہ وہ والا نون ہے، یا گر گئی تو یہ نون رہ گیا. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک جزاک اللہ اللہم خیر. وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس سے جڑے رہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام جزاک جزاک اللہ اللہ ورحمۃ خیر. خیر اللہ استاذہ. وبرکاتہ استاذہ. جزاک ہاں، اللہ خیر کثیرا. کلاس سے جڑے رہیں اسی طرح. سمینہ باقی سدرا بھی آئی آج، تو جڑے رہیں. ایک ہفتے میں ایک کلاس تو آپ نے اٹینڈ کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کریں اور سیکھیں، اور اتنی چیزیں دہرائی جاتی ہیں، سب ہوتی ہیں. جب آپ سکپ کرتے ہیں نا تو بیچ میں، اب انہوں نے ثقیلہ اور خفیفہ نہیں پڑھا نا، تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی سدرا کو آج میں نے کیا بتایا، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا سب کو. نون ثقیلہ اور خفیفہ کا ٹاپک اس سے پہلے تھا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آگے جب ہم کریں گے، جب ٹیسٹ آنے والا ہوگا ایک دفعہ پھر میں ریوائز کروا دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اوکے، فی امان اللہ. فی امان اللہ. جزاک اللہ استاذہ، جزاک اللہ.